Let's pray. Amen. Thank you, Abba Heavenly Father, today evening once again for giving us another time and opportunity to come in your presence. Thank you, Lord, for giving me grace to come in thy house, giving my voice back, Lord. I really thank you that I can be back in your house praising your holy name. We thank you for the message which we had just before this service on paradox, Lord. And we thank you, Lord, that you work paradox amongst your children. Lord, we come here hungering and thirsting, desiring to have another time of fellowship with you. This bride can never say no, Lord. She just wants more of you. And Lord, you are there to fulfill that desire. Under your blood we come. Forgive us our sins and trespasses. Wash us with your precious blood. Give us grace to worship you in spirit and in truth. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. Amen. Thank you, Jesus. Let's sing the same chorus. Our brother is praying. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Thank you, Father. We praise your holy name. Why will, oh Lord, we praise you. Thank you for this grace which you've given to us to come in your presence, Lord. Worship you in spirit and in truth, Father. To come in thy holy temple, Lord. Thank you, Father. May thy name be praised and glorified. Thank you, Father, for being with us. Amen. May thy name be praised, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen.
May my will forever be evermore your own. Amen. The bleeding lamb for us, Father. We thank you, Lord. Our atonement, our sacrifice. We identify with you, Lord Jesus. Hallelujah, for giving us grace to come in your presence, Lord, to be filled with your word and to be filled with your presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh Lord, it's you who restores us. It's you who gives us strength, Father. We thank you for that. May thy name be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's turn to Revelations 10. प्रकाशित वाक्य 10 निकाल ले. And I'll be reading verse 1 to verse 7. मैं पहली 7 आयतें पढ़ूंगा. This is the eternal word. ये अनंत वचन है. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Sweet Jesus, we read this scripture which has been fulfilled in our age, and from there we draw our ministry, our message, our lives, our focus, our goal. And Lord, the message of the rapture which we are just going to discuss, give us grace to understand it. For we commit ourselves into your hands of grace. Let every evil and demonic spirit be cast away from this place in hell for the day of his destruction. Under your blood we come. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. Amen. आमीन. God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. Tonight to be here in the house of the Lord again. आज रात्रि खुदावन के भवन में दोबारा आने के लिए. I believe these 3 days meetings has been a blessing for all of you. मैं विश्वास करता हूं कि ये 3 दिन की सभाएं हम सब के लिए बड़ा आशीष का कारण बना है. Yeah, it has been for me as well. मेरे लिए भी बना है. God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. And thank God he gave my voice back. और उसका धन्यवाद, उसने मेरी आवाज को वापस लौटाया है. Amen. Amen. God's name be praised. खुदा का नाम मुबारक हो. And how fast it happened. Amen. और कितनी जल्दी ये हो गया. Thank God for that. खुदा का धन्यवाद हो इसके लिए. So God's name be praised. So खुदा का नाम मुबारक हो. My goodness. And I put a cross on this. This last Tuesday, the message on the trumpet we saw. पिछले मंगलवार जो हमने तुरैयों वाला संदेश देखा. We saw this fact. He's saying, come and dine. हमने इस वाली बात को देखा था. वो आ रहा कह रहा है आओ और भोजन करो. क्या याद है आपको? And then they caught 153 fishes. और तब उन्होंने 153 मछलियां पकड़ी. Just see in your message the number of the paragraph. आप देखिए उस अनुच्छेद का क्या नंबर है, गिनती क्या है, अंक क्या है. Where he's talking about the trumpet. जब वो बातचीत कर रहे हैं तुरैयों के बारे में. We read the last time. पिछली बार हमने पढ़ा. It's paragraph 153. और वो अनुच्छेद 153 है. Amen. आमीन. So that's not just a number.
ये केवल कोई गिनती नहीं है, that is something. ये कुछ है. Amen. आमीन. God's name be praised. खुदा का नाम मुबारक हो. And so 153 fishes were caught. सो 153 मछलियां पकड़ी गईं. Now I like to move a little ahead with you today आज मैं थोड़ा आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा and see something further. और आगे कुछ देखना चाहूंगा. Now you have the background of the message. संदेश की भूमिका आपके पास है. In fact, there are many things which you and I need to see, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आपको और मुझे देखना जरूरी है, which we have not even touched till now. जिसको हमने अब तक छुआ भी नहीं है. And may God give us grace to see these things. और काश खुदा हमें अनुग्रह दे ताकि हम इन चीजों को देख सकें. And I believe that the Holy Ghost is the divine revealer of the truths. और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा वो दिव्य प्रकट करने वाला है इन सच्ची बातों का. And he reveals his truth in his time. और अपने सत्य को वो अपने समय में प्रकट करते हैं. Now I'm reading from paragraph 154 now. अब मैं 154 में अनुच्छेद से पढ़ रहा हूँ. The first thing comes forth is his message, पहली चीज जो निकल के आती है वो उसका संदेश है, calling the bride together. ताकि दुल्हन को इकट्ठा किया जाए. So first he calls the bride together. सो पहले वो दुल्हन को इकट्ठा करता है. The next thing is a resurrection of the sleeping bride, the ones died back in the other ages. और अगली चीज जो होती है वो है पुनरुत्थान सोए हुए संतों का, सोई हुई दुल्हन का, वो जो कि पिछले युगों में मर चुके हैं. They are caught together. वे इकट्ठा उठा लिए जाते हैं. And the trumpet, और तुरही the feast in the heavens, स्वर्गों में जो पर्व है, in the sky. स्वर्ग में, आकाश में. Why? That's the thing that takes place, friends. ये वो चीज है दोस्तों जो कि घटती है दोस्तों. And that is why he brings all these three voices. इसलिए उन तीनों शब्दों को लेके आते हैं. And what all these voices does. और ये तीनों शब्द क्या करते हैं? Shout gathers the bride. ललकार दुल्हन को इकट्ठा करती है. Then the voice of archangel is the resurrection of the sleeping bride. और प्रधान दूत का शब्द जो है वो सोए हुए दुल्हन का पुनरुत्थान है. And the trumpet is the call to the feast. और खुदा की जो तुरही है वो है बुलाहट उस पर्व के लिए. And we saw that you enter a feast with a joyful heart. और हमने देखा था कि हम उस पर्व में एक आनंद के हृदय के साथ हम जाते हैं और प्रवेश करते हैं. So when you hear the trumpet, तो जब आप तुरही को सुने, God puts a sense of joy in you. खुदावंद एक आनंद का भाव आपके अंदर डालता है That we are going to the feast. कि हम पर्व में जा रहे हैं. So I think it is for a worshipper. मैं विश्वास करता हूँ ये एक उपासक के लिए है. Because that is the hag which he has. ये वो है जो उसके पास है. Amen. Amen. We thank God that he is doing these things. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो इन चीजों को कर रहे हैं. And being a creator, और सृष्टिकर्ता होने के नाते these days he is doing another miracle. इन दिनों में वो एक और आश्चर्यकर्म का काम कर रहे हैं. Even if there's no worship in you and you don't know how to worship, यहाँ तक कि अगर आपके अंदर कोई उपासना ना हो और आपको उपासना करनी ना आती हो, he is creating that worship. वो उस उपासना को आपके अंदर उसकी सृष्टि कर रहे हैं. Because that attribute was in him. क्योंकि वो गुण उनके अंदर था. And by speaking the word, और वचन को बोलने के माध्यम से the attributes are in you. वो गुण आपके अंदर हैं. In fact, they were already in you. सही बात तो ये वो हमेशा से आपके अंदर थे. They were already in you in your genes. आपके जीवांश में वो पहले से पाए जाते थे. That's right. ये बात सही है. But the thing is, it needed the word in the season. लेकिन बात ये थी कि वचन चाहिए थी मौसम में. And when the word of the season strikes that gene, और जब मौसम का वचन आपके जीवांश को छूता है, that attribute gets up. वो जो गुण है वो जग जाता है. And so that real worship begins. So वो वास्तविक उपासना चालू हो जाती है. In spirit and in truth. आत्मा में और सच्चाई में. Which he wants to hear. जो वो सुनना चाहते हैं. Amen. आमीन. That same which was there before the foundation of the world. वही जो बिना आलम से पेशतर पाया जाता था. Amen. आमीन. Which was before the foundation of the world will be in eternity. जो बिना आलम से पेशतर था वो अनंतता में होगा. Because that was eternity. क्योंकि वो अनंतता था. That will be eternity. और वो अनंतता होगा. You can understand that. Amen. So first thing is calling the bride. So पहली चीज क्या कर रहे हैं? दुल्हन को बुलाया जा रहा है. Then is the resurrection of the sleeping bride. फिर सोई हुई दुल्हन का जगाया जाना है, पुनरुत्थान है. And then the trumpet. और फिर तुरही. A call to the feast. एक बुलाहट पर्व के लिए. Which is the wedding supper. जो कि ब्याह का भोज है. And so that's the thing that takes place, friends. और दोस्तों ये है वो चीज जो घटती है. Then he says, we are right there. Ready now. नबी कह रहे हैं हम ठीक वहां पर हैं, अभी तैयार हैं. In other words, we have already arrived.
दूसरे शब्दों में हम पहले से पहुंच चुके हैं। We have now arrived to that time हम उस समय में आ गए हैं that He can call us to the feast anytime कि वो हमें पर्व पे कभी बुला सकते हैं and we will go home. और हम घर चले जाएंगे। Are you catching the message? क्या संदेश पकड़ पा रहे हैं आप? We are right there, हम ठीक वहीं पर हैं, ready now. अभी तैयार हैं। Then why haven't we gone up? सॉरी, Then why haven't we gone up? तो हम ऊपर गए क्यों नहीं अभी तक? The only thing the church coming out has got to lay before the Son. केवल मात्र चीज जो कलीसिया को करनी है वो है उस पुत्र के सामने, पुत्र की उपस्थिति में बने रहें, To ripen. ताकि पक जाएं। The light of the SON Son, जो SON सन की जो रोशनी है, पुत्र की जो रोशनी है, it will ripen you from the inside. वो अंदर से बाहर तक आपको पका देगा। The attributes which were in you वो गुण जो आपके अंदर थे will come out. वो बाहर निकल के आ जाएंगे। And this is the work of the Son. और ये पुत्र का काम है। You see, the seed doesn't have to do anything. आप देखिए, बीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। The seed has to do just one thing. बीज को केवल मात्र एक काम करना है, You just lay in the presence of the Son. कि पुत्र की उपस्थिति में बना रहे। And the light of the Son is the light of this message. और पुत्र की रोशनी इस संदेश की रोशनी है। So when you lay in the presence of the Son, तो जब आप पुत्र की उपस्थिति में पड़े रहते हैं और बने रहते हैं, in other words, you lay in the presence of this message. दूसरे शब्दों में आप इस संदेश की उपस्थिति में बने रहते हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Just lay in that presence. उस मौजूदगी में बने रहे, Don't have to do much. अधिक कुछ नहीं करना, Just lay there. उसमें बने रहे। You see, आप देखिए, those who know swimming learn a trick वो जो तैरना जानते हैं वो एक चाल सीख लेते हैं, to leave the body. अपने देहों को छोड़ देते You हैं। don't fight with the water. आप पानी से जद्दोजहद नहीं करते, You just lay yourself on the water पानी में अपने आप को बस आप लिटा देते हैं and the water carries you. और पानी आपको उठा देता है। Well, the water is not here. पानी नीचे तक, घुटने के नीचे तक नहीं है, It's not till here. कमर तक नहीं है, It's not till here. कमर पे नहीं है, It has gone beyond. वो ऊपर जा चुका है। It's a floating river. ये एक ऐसी नदी है जिसमें तैरा जा सकता है। So you need to understand those dynamics. तो आपको ये गतिशीलता मालूम होना चाहिए। That is why Brother Branham said the word, इसलिए भाई ब्रैनम बताया जो वचन है, let go and let God. होने दे और प्रभु को करने दे। You see, you cannot do anything. आप देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। You and I can't do anything. आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। Yeah, you can't do it. हम नहीं कर सकते। The minute you come to this point that I will do something, जिस क्षण आप इस पॉइंट पे आते हैं कि मैं कुछ कर दूंगा, then the struggle begins. तब जो है जद्दोजहद चालू होती है। That is when you're fighting for your life. ये वो समय है जब अपने जीवन के लिए आप लड़ रहे हैं। And you don't have to fight. और आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। Just set your wings. अपने पंखों को बस खोल दीजिए, फैला दीजिए। Just lay in the presence of the Son. पुत्र की उपस्थिति में बने रहें बस, And everything starts happening. और हर एक चीज घटने लगती है। You see, 5 or 10 minutes in His presence, आप देखिए, 5 और 10 मिनट उसकी उपस्थिति में suddenly you start feeling renewed. अचानक से आप पाते हैं कि आपके अंदर नवीकरण हो रहा है। Hear the messages. संदेश को सुनिए, Just put on the tape टेप लगा लीजिए and let it go on for 5 or 10 minutes. और चलने दीजिए 5-10 मिनट। And when you're really hearing it, और जब वास्तविक रूप में आप उसको सुन रहे हैं, you'll see a renewing taking place. आप देखेंगे आपके अंदर एक नवीनीकरण होगा। So you just got to lay in the presence of the Son. केवल पुत्र की उपस्थिति में बने रहना है। Does the wheat do anything? क्या गेहूं कुछ करता है? No. कुछ नहीं करता। The only thing the wheat does is lay in the presence. केवल मात्र काम जो गेहूं करता है वो उसकी उपस्थिति में बना रहता है। And in order to do that, और इसको करने के लिए the shuck has to leave. जरूरी है कि भूसी छोड़ जाए, Because shuck obstructs the sun. क्योंकि जो भूसी है वो सूरज की रोशनी को बीज तक आने में बाधा डालती है। But that is also the law of nature. लेकिन ये भी प्रकृति का एक नियम है That when the life starts going in the seed, कि जब जीवन बीज में जाने लगता है, the whole plant dies. पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। The whole wheat plant dies. संपूर्ण जो गेहूं का पौधा है मर जाता है, Because wheat sucks the life of the whole tree. क्योंकि जो गेहूं है पूरे वृक्ष का जीवन चूस लेता है। And just saw last Sunday, the sun became hotter. और हमने देखा पिछले संडे को कि जो सूरज है वो और अधिकाई से गहन हो चुका है और The गर्मी heat ज्यादा हो has गई, increased. गर्मी बढ़ गई है। Now this is the heat when the wheat will become totally ripe. ये वो गर्मी है जिसमें गेहूं संपूर्णतया पक जाएगा। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? The heat has started rising up physically and spiritually. आत्मिक तौर से और भौतिक रीति से गर्मी बढ़ चुकी है। Now this is the heat अब ये वो गर्मी है which shines, and what happens is, because shuck is dead, it has no water, it bursts. तो क्या होता है, गर्मी की तीव्रता के कारण
पानी की कमी हो जाती है उस भूसी में, और जब भूसी में पानी नहीं होता तो वो सूख करके अकड़ करके फट जाता है और मर And जाता है। because it bursts open, और क्योंकि वो फट जाता है, it leaves the seed. वो बीज को खुला छोड़ देता है। That leaves the seed open, ये बीज को खुला छोड़ देता है that it can ripen in the presence of the sun. ताकि वो उस सूर्य की रोशनी में पक सके। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं मेरी बात? So when you start coming closer to God, तो जब आप खुदा की समीपता में बढ़ते जाते हैं, all that chuck in your life leaves, आपके जीवन में जितना भी ये भूसी पाया जाता है वो छोड़ देता है, and you are just laying directly in the presence of the sun. और आप पुत्र की उपस्थिति में सीधे सीधे बने रहते हैं। And when that presence comes, और जब वो मौजूदगी आती है, it does something on the inside, तो अंदर वो कुछ करती है मौजूदगी, and that process is called ripening. और इस क्रिया को कहते हैं पकना। It is automatic. ये अपने आप होती है, You don't have to labor for that. उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। You see, you don't have to labor for all this. आप देखिए, इस सब कुछ करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। Just lay in the presence of the sun. केवल पुत्र की उपस्थिति में बने रहे। Then you find when the light of the sun falls on you, तब आप पाएंगे जब पुत्र की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, because of that heat, उस गर्मी की वजह से, it's already inbuilt. ये पहले से अंदर उसकी बनावट ऐसी है। Certain acids and certain things start coming out, कुछ खास एसिड्स और कुछ तत्व ऐसे निकलने लगते हैं that the wheat starts ripening up. कि गेहूं जो है वो पकना शुरू हो जाता है। And more the heat, और जितनी अधिक गर्मी होती है, well, the faster is the ripening. उतनी जल्दी पकना भी होता है। Our S-O-N sun is very, very hot. हमारा जो एसओएन सन पुत्र है वो बहुत ज्यादा अधिक गर्मी है उसमें। Well, the rays are very strong now. उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र है। And when you lay, and prophet has announced many years back, नबी ने इसकी घोषणा कई साल पहले किया है। it is the rising of the sun. ये सूर्य उदय का समय है, And when the sun has already come, और जब सूर्य पहले से आ चुका है, just lay in his presence. उस पुत्र की उपस्थिति में बने रहे। बादल देखते रहो. आमेन, Alright? बने रहो उसके साथ. आमेन, आमेन। एक अजीब सी बात बोलूंगा आपसे। एक दिन ये बादल, अरे ये क्या जो सो भी है, ये बादल हिलेगा। एक दिन इस बादल में से कुछ होगा। कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ और मैं भी कुछ देख चुका हूं। खुदा ने आपको भी दिखाए। आमेन। और इसमें कुछ होता है। अभी कोई जादू नहीं सिखा रहा हूं आपको, लेकिन यह है तो हमारे मसीह की तस्वीर। You get it? Then after some time, फिर कुछ समय पश्चात, when you keep on looking at this, not just cloud the face, बादल नहीं, केवल मैं कहूंगा चेहरे को जब आप लगातार देखते रहते हैं, then one day suddenly something happens, तो अचानक एक दिन कुछ होता है, and that something does something to you. और वो जो कुछ होता है वो आपके जीवन में कुछ करता है। It shows you your position. वो आपको आपका स्थान दिखाता है। When it shows you your position, जब वो आपको आपका स्थान दिखाता है, well, you are changed from inside. फिर आप अंदर से बदल चुके हैं। So when the ripening takes place, तो जब पकना घटता है, you lay in the light of this message. आप इस संदेश की रोशनी में आप पड़े रहते हैं। Amen. आमेन। Then the prophet says the great combine will come by after a while. और अभी कह रहे हैं कुछ समय पश्चात वो बड़ा कंबाइन आता है। See, on the Delhi roads you can see those combines. फिर आप दिल्ली की सड़कों में उन कंबाइंस को देख सकते हैं। That's right. बात सही है। The combines will come after a while. कुछ समय बाद फिर वो कंबाइन आते हैं। But दबाव आए। that combine is actually the squeeze, ये कंबाइन वास्तविक रूप में एक दबाव है, where all the nominal churches will be bound in one bundle. जिसमें कि सारे नामधारी गिरजे जो है वह एक गट्ठे में बंद दिए जाते हैं। Only the bride would be left out. केवल दुल्हन रह जाती है। Amen. आमीन। That's what he's saying. The great combine will come after a while. यही नबी कह रहे हैं कुछ समय पश्चात एक बड़ी कंबाइन आएगी। The wheat will be burned. I mean, he means the stalks. वो नबी कह रहे हैं कि जो डंठलें वो जला दी जाएंगी, But the grain will be gathered into its garner. लेकिन जो दाना है वो खत्ते में इकट्ठा किया जाएगा। See, देखा, you're not blind people. आप लोग अंधे लोग नहीं हैं। He's speaking in Yuma to the businessman group. यूमा में बिजनेसमैन ग्रुप से नबी बातचीत कर रहे हैं। You're sensible people. आप तो बहुत ही सेंसिबल लोग हैं। And if I stood here and said those things for prejudice, और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ किसी और मैंने इन बातों को प्रेजुडिस पक्षपात में होते मैंने हुए, पक्षपात में होते हुए अगर कुछ यहाँ पे बोला है, I say it because it's life. मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जीवन है।
because I'm responsible to God for saying it. क्योंकि इसको कहने के लिए मैं खुदावंद के सामने मैं जिम्मेदार हूं And I must say it. और मुझे कहना चाहिए इसे। And my message. और मेरा संदेश। Now he's going to show something to you and me. अब वो आपको और मुझे कुछ दिखाएंगे। All the time knowing back there under healing and so forth like that. और इतने समय तक ये चंगाई में और इन चीजों में होते हुए was just to catch the people's attention. वो इसलिए था ताकि लोगों के केवल आकर्षण को पकड़ा जाए। Knowing the message would come. इस बात को जानते हुए कि संदेश आएगा। And here it is. और यहाँ पर वो है। And them 7 seals opened those mysteries. और उन 7 मोहरों ने उन भेदों को खोल दिया। And showing those things is what's happened. और दिखा रहा है कि और जो हो रहा है वो इस बात को दर्शा रहा है। I didn't know it. मैं इसको नहीं जानता था। What he's trying to tell you and me, आपको और मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? under the first pull and second pull, पहले और दूसरे खिंचाव के अंतर्गत was just to catch the people's attention. ये केवल लोगों के आकर्षण को पकड़ना था। Knowing this, that my message is coming, इस बात को जानते हुए कि मेरा संदेश आ रहा है। he was waiting for his message. वो अपने संदेश के लिए इंतजार कर रहे थे। Read spoken, what is the original seed? वो संदेश को पढ़िए, मुंह से बोला गया शब्द ही मूल बीज है। He's saying, I'm waiting. वो कह रहे मैं इंतजार कर रहा हूँ। He was waiting for his message. अपने संदेश के लिए वो इंतजार कर रहे थे। He has preached so many messages. कई संदेश उन्होंने प्रचार किए हैं। That's right. बात सही है। But that real message, लेकिन वो वास्तविक संदेश he was waiting for it. वो उसके लिए इंतजार कर रहे थे। And he said, when the 7 seals came, और अभी बताया जब 7 मोहरें आई, that is when those mysteries were opened. ये वो समय है जबकि वो भेद खोल दिए गए। In other words, he's trying to tell people, दूसरे शब्दों में लोगों को बताना चाह रहे हैं, that was my message. ये था मेरा संदेश वास्तविक रूप में। 7 seals was my message. 7 मोहरें मेरा संदेश था। Is that right? ये बात सही है। In the days of the voice of the 7th angel, 7वें दूत के शब्द देने वाले दिनों में, when he shall begin to sound, जब वो तुरही को फूकेगा, the mystery of God should be finished, खुदा का जो गुप्त मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। as he had declared to his servants the prophets. जैसे उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताया है। All those mysteries वो सारे के सारे भेद which were in the Bible, जो कि बाइबल में पाए जाते थे, sealed up by 7 seals, 7 मोहरों के द्वारा बंधित थे, will be revealed in the days of the voice of the 7th angel. 7वें दूत के शब्द देने वाले दिनों में वो प्रकट हो जाएंगे। And that is his message. और ये है उसका संदेश। Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? And he's trying to tell, the first thing comes forth is a messenger with a message. और वो बताना चाहते हैं कि जब सबसे पहले आता है वो एक संदेशवाहक अपने संदेश के साथ आता है, To gather the bride. ताकि दुल्हन को इकट्ठा करे। And that is the shout. और ये ललकार है। Then brother, what is the shout then? तो वे भाई ललकार क्या है? It is a revealing of the 7 seals. ये 7 मोहरों का प्रकटीकरण है। Are you getting it? क्या समझ में आ रही है? So when the book opened, तो जब पुस्तक खुली and when the seals were opened, और जब मोहरें खोल दी गई, that was the shout to gather the bride. ये ललकार था ताकि दुल्हन इकट्ठी की जाए। Then, तब if you are the bride, अगर आप दुल्हन हैं, you'll hear the shout. आप ललकार को सुनेंगे। Shout interests you. ललकार आपके अंदर दिलचस्पी पैदा करता है। Now try to catch the attitude. आप इस स्वभाव को पकड़ने की कोशिश करिए। Because we need to break it down so that everyone can understand. हमें इसको यहाँ तक इस हद तक तोड़ना ताकि हर एक कोई समझ पाए। When miracles happen, जब अजूबे घटते हैं, well, everybody is very interested. जब हर एक कोई बड़ा दिलचस्प होता है, And we all love those miracles. और हम उन आश्चर्यक्रम से बड़ा प्रेम करते हैं। And where God is, miracles are there. और जहाँ खुदावंद होता है वहाँ पे अजूबे होते हैं। And they still happen. और वो फिर भी घटते हैं। May God's name be praised. खुदा का नाम मुबारक हो। But miracles and healings is not the main attention catcher for the bride. लेकिन चंगाई और आश्चर्यक्रम के काम मुख्य चीज नहीं है जिससे दुल्हन का आकर्षण आता है। The bride gets her attention caught by something else. दुल्हन का आकर्षण किसी और चीज के द्वारा पकड़ा जाता है। And if you read the message, और अगर आप संदेश को पढ़ें, shout was to gather the bride, ललकार इसलिए था ताकि दुल्हन को इकट्ठा किया जाए, not the church. कलीसिया को नहीं, नामधारी गिरजा को नहीं। So you find that nominal church doesn't get attracted by the shout. तो आप पाएंगे नामधारी जो गिरजा है वो इस ललकार के द्वारा आकर्षित नहीं होता। Only the bride material. केवल दुल्हन वाला जो पदार्थ है। But what is in the seals? लेकिन मोहरों में क्या है? Mysteries. भेद। That means इसका मतलब ये है mysteries interest the bride. भेद ऐसी चीज है जो कि दुल्हन को के अंदर दिलचस्पी को लेके आते हैं। She loves mysteries. उसको दिलचस्पी है इन भेदों से। She loves to know God. उसको बड़ी प्रीति है खुदा को जानने में। She loves to read this book. उसको इस पुस्तक को पढ़ने में बड़ी प्रीति है। And God before the foundation of the world knew that. और खुदा बिलान हमसे पेशतर इस बात को जानते थे। Because when he put those names there, जब उसने उन नामों को वहां रखा, that name was a mystery. वो नाम एक भेद था।
which were to be opened in this age. जिसको कि इस युग में खुलना जरूरी था। Now you heard this message during these 3 days. आपने 3 दिनों में इस संदेश को सुना है। So when the mysteries are open, तो जब भेद खोल दिए जाते हैं, only the bride gets interested. केवल दुल्हन की दिलचस्पी होती है। The rest of them are not even interested. बाकी लोगों को बिल्कुल जरा सी भी दिलचस्पी नहीं आती। And that is what was the problem in the Yuma meeting और यही तो समस्या थी यूमा की सभा में and the other meetings. और बाकी सभाओं में। Everybody is not the bride. अरे कोई दुल्हन नहीं है, They are just there to serve a meeting. That's all. वो यहाँ वहां पे केवल एक सेवा करने आए हैं सभा में। Meeting will end. सभा समाप्त होगी, Then there will be a food. और फिर भोजन होगा। How are you? How are you, Demos? How are you doing things? आप कैसे हैं दिमोश भाई, और आप लोग कैसे हैं? Oh yeah, how's the कैसे चीज business चल रही going? है और बिजनेस कैसे चल रहा है? Ah, brother Carl, how are you? हाय ब्रदर कार्ल, आप कैसे हैं? You know, which happens after the meeting. आप देखिए, ये जो आमतौर से चीज है जो कि सभाओं के बाद होती है। People of like mind sit together on the banquet table. एक मन वाले जो लोग हैं वो मेज पे इकट्ठा बैठते हैं, Then they have a chat फिर उनकी आपस में वार्तालाप बातचीत होती है, and they quickly have it and they go, okay, see you, brah. और वे जल्दी से खा पी के चले जाते हैं, कहते हैं ओके फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। What about the message? संदेश के बारे में क्या? Who's pondering on that? उस पे कौन मनन कर रहा है? Hardly anybody. शायद ही कोई। That is why the prophet said, इसलिए नबी ने कहा, shout is to gather the bride. ललकार इसलिए ताकि दुल्हन को इकट्ठा किया जाए। Just think of this. और इसके बारे में सोचिए, You and I were never in that banquet. आप और मैं कभी भी उस वाले बैंक्वेट में नहीं थे उस, And we are there about भोज में। more than 10,000 miles away from Arizona. और एरिज़ोना से 10,000 मील दूर है वो। We are here. I'm हम लोग saying. यहाँ पर 10,000 मील दूर है, More than that. उससे भी ज्यादा दूर है हम। And 50 years, more than 50 years later. और 50 साल से भी अधिक के बाद Just think of this. इसके बारे में सोचिए। And that message interests us. और ये वाला जो संदेश है हमें दिलचस्पी देता है। You see, आप देखिए, आपको मेहनत नहीं करनी कि इंटरेस्ट जगाएं। जिनका इंटरेस्ट है उनका है। आमीन। जिनका इंटरेस्ट नहीं है भाड़ में जाए। सच है। मैं साफ बोल रहा हूं आपसे, और ये मेरी भाषा नहीं है, ये एटीट्यूड हमारे खुदा का है। खुदा इंटरेस्टेड नहीं है कि अपनी बातें सबके सामने खोलें। सच है। मैं भाड़ में जाओ यार, खाना खाओ, आओ एक फीस्ट में शामिल हो, खाओ पियो, जाओ, निकल लो। लेकिन जो इंटरेस्टेड होगा वो दिखेगा। आमीन। वो उसे मालूम है जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। फिर उनके घर जाएगा वो। आमीन। अब देखिए, आप और हम जो इंसान हैं, जब किसी नए कांटेक्ट को बनाते हैं तो क्या उसे फोन नहीं लगाते? मीटिंग करी, फिर उसको फोन लगाया, उससे बात करी, फिर एक दोबारा मीटिंग की एक वो बनाते हैं ताकि हम उससे दोबारा मिलें। तो वही काम हमारा खुदा करता है। जब यहां पे हमसे मिलता है तो फिर हमें फोन लगाता है, कुछ करता है कि हम उससे फिर मिलें। ये खुदा खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आमीन। आमीन। हमारी और ऐसा कई जीवन है यहाँ पे जिनके साथ ये होता है। हालेलुया। आर यू गेटिंग इट? क्या समझ में आ रही बात? The rest are not even interested. बाकी तो उसमें उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। But the bride is. लेकिन दुल्हन की दिलचस्पी है। He says, नबी कहते हैं, that was my message. ये था मेरा संदेश। All the while under healing and so forth, I was just waiting. इस चंगाई और वगैरह वगैरह चीजों आश्चर्यक्रम का मैं केवल इंतजार कर रहा था। But when the real message came, लेकिन जब वास्तविक संदेश आया, was when the 7 seals were opened. वो तब था जब 7 मोहरें खुल गईं। Those mysteries, वो भेद, showing those things is what's happened. I didn't know it. इस बात को दिखाते हुए जिनको मैं जानता नहीं था। Now just try to turn back to Revelation 10. अब वापस निकाले प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय। But before I go, let me read in 157 as well. लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाए, मैं 157वां अनुच्छेद भी पढ़ूंगा। But there is men standing right here now, लेकिन यहाँ पर मनुष्य है जो कि यहाँ पे खड़े हैं, was standing right with me. जो कि ठीक मेरे साथ खड़े हुए थे। He's talking about Brother Gene Norman and Brother Fred Sothman. वो बातचीत कर रहे हैं भाई जी नॉर्मन की और भाई फ्रेड सॉथमन की। When you all heard me preach that sermon, जब आप सबने मुझे सुना था उस संदेश को प्रचारते हुए, sirs, what time is it? श्रीमान क्या समय है वो? That morning, उस सुबह exactly where it said it would be, ठीक जहां उसने कहा था वहां पे, there stood 7 angels. वहां पे खड़े हुए 7 दूत। Exactly where he said it would be, ठीक जहां पे उन्होंने कहा था वो होंगे, there stood 7 angels. वहां खड़े हुए 7 दूत, Standing right there from the heaven. जो कि स्वर्ग से आए थे। 7 दूत वहां खड़े हुए, And as they went up, और जैसे वो ऊपर गए, and the whirlwind taking them up there, और उस बवंडर ने उनको ऊपर ले गया, we standing watching हम खड़े हुए देख रहे थे as they went away. जैसे वो चले गए। Science took the picture of it विज्ञान ने उसकी तस्वीर ली, all the way across the nations, और राष्ट्रों में दूर दूर तक के, down into Mexico. मेक्सिको भी। Are you listening? क्या सुन रहे हैं?
He's explaining that phenomenon again. वो इस फिनोमेना को दोबारा समझा रहे हैं, इस घटना को You दोबारा see, समझा रहे हैं। he's not able to get over it. नबी उससे हट नहीं पा रहे हैं। It's now 1965, अभी 1965 आ गया है and this is December. और ये दिसंबर है। More than 2 years have gone. 2 साल से अधिक बीत चुके हैं। After every few messages or few months, he's bringing that again. हर एक आध दो संदेश के बाद, कुछ संदेशों के बाद, कुछ महीनों के बाद नबी वापस उस वृत्तांत को लेके आ जाते हैं, Because that was the main happening. क्योंकि वो मुख्य घटना थी। The key happening in the end time. ये मुख्य घटना थी इस अंत समय में, Which would tie the whole bride to the message. जो कि संपूर्ण दुल्हन को संदेश के साथ बांध देगी। Amen. आमीन। He's explaining it in detail. नबी उसको विस्तार में समझा रहे हैं। There stood the 7 angels, वहां खड़े हुए 7 दूत, and when the whirlwind went up, और जब बवंडर ऊपर गया they went up. वो ऊपर चले गए। In other words, when the whirlwind was going up, दूसरे शब्दों में जब बवंडर ऊपर जा रहा था, 7 angels made the whirlwind. 7 दूतों ने उस बवंडर को बनाया। What did he see? क्या देखा नबी ने? He saw them rotating. नबी ने उनको गोले में घूमते हुए देखा। They all mixed with each other, एक दूसरे के साथ वो मिल गए, and then they started rotating. और फिर उन्होंने घूमना शुरू किया। The smoke started rotating fast. जो धुआं था बहुत तेज गति से घूमने लगा, Then it चक्कर went काटने up. लगा, फिर ऊपर चलने लगा। Are you listening, brother? क्या सुन रहे मेरे भाई? And then that mist went up in the sky. और फिर वो जो धुंध थी वो स्वर्ग में, आकाश में ऊपर चली गई। Then science took the picture, विज्ञान ने फिर उसकी तस्वीर ली, but it was just one picture which they took. लेकिन केवल मात्र एक तस्वीर थी जो उन्होंने ली। But it was 7 angels who homogenized. लेकिन ये 7 दूत जो आपस में घुल मिल गए। Are you listening? क्या समझ रहे हैं? And he saw them with their eyes, his eyes. और उसने अपनी आंखों से उसको देखा। And there, when I was watching one day, और वहां पर जब मैं उसको एक बार देख रहा था, when I started preach these 7 church ages, जब मैंने इन 7 कलीसिया कालों का प्रचार करना शुरू किया, and I called Jack Moore, और मैंने जैक मोर को बुलाया, a great theologian. एक बड़े ही विद्वान आदमी है। My brother is talking about this picture now. भाई ब्रैनम आप बातचीत कर रहे हैं इस तस्वीर की। I said, Jack, मैंने कहा जैक, who is this person standing there? ये कौन मनुष्य है जो वहां खड़ा है? There is one like the Son of Man standing there, hair as white as wool. एक मनुष्य के पुत्र सरीखा वहां खड़ा है जिसके की बाल जो है पाले के नाई उज्ज्वल है। I said, he was a young man. मैंने कहा वो एक जवान मनुष्य है, How could he have hair as white as wool? उसके बाल पाले के नाई उज्ज्वल कैसे हो सकते हैं? He said, Brother Branham, that was his glorified body. और उन्होंने कहा कि भाई ब्रैनम ये उसकी महिमा युक्त देह है। That didn't ring the bell. ये बात समझ में आई नहीं, That is why I keep on repeating. इसलिए मैं दोहराता रहता हूं, This is not the glorified body. ये महिमा युक्त देह नहीं है। The minute you say this is glorified body, जिस क्षण आप कहते हैं ये महिमा युक्त देह है, you are saying the whole process of rapture is finished, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रैप्चर की पूरी क्रिया समाप्त हो गई, which was the false doctrine preached by Jairaj जो कि जयराज के द्वारा झूठी शिक्षा प्रचारी गई and some others. और बाकियों के द्वारा। Rapture is over and everything is over, even millennium is over. We are in eternity. रैप्चर समाप्त हो गया, मिलेनियम समाप्त हो गया, हम अनंतता में पहुंच गए हैं। ये You know, one brother came from Singapore also, he did that. आपको मालूम है एक भाई आए थे सिंगापुर से, उन्होंने भी यही बोला, Because this is not the glorified body. क्योंकि ये महिमा युक्त देह नहीं है। This is not. ये नहीं है। That is why Brother Branham asked Brother Jack this question. इसलिए भाई जैक से जब भाई ब्रैनम ने सवाल पूछा, Was that Brother Jack said that was his glorified body. भाई जैक ने बोला कि ये उसकी महिमा युक्त देह है। That didn't ring the bell. ये बात समझ में आई नहीं। Then what kind of a body is this? फिर ये किस किस्म की देह है? But when I went in the room and started praying, लेकिन जब मैं कमरे में गया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, he let me know what it was. See? उसने मुझे समझाया कि वो है क्या चीज। देखा? Then he's explaining it. अब नबी इसको समझा रहे हैं। I've always preached that he was deity, मैंने हमेशा ये प्रचार किया कि वो खुदाइयत है, not just a man. केवल मनुष्य नहीं। He was God manifested in the flesh. वो खुदा जो कि मनुष्य जो कि देहधारी हुआ देह में, God, the attribute of God of love. खुदावन जो कि गुण है प्रेम का, The great attributes that come down, वो महान बड़े बड़े गुण जो कि नीचे उतर के आए, displayed here on earth, यहाँ पृथ्वी पर दर्शाए गए of God. खुदा के। Jesus was God's love, यीशु मसीह खुदा का प्रेम था, which built a body जिसने कि एक देह को तामीर किया, बनाया, that Jehovah himself lived in. जिसमें यहोवा स्वयं उसने वास किया। He was the fullness of the Godhead bodily. वो देह में खुदाइयत की संपूर्णता थी। But just remember, लेकिन इस बात को याद this रखिए, is not that flesh body. ये वो मांस वाला देह नहीं है। You say, and the word was made flesh. आपने कहा वचन देहधारी हुआ। Yes, that was Jesus on the earth. ये था यीशु पृथ्वी के ऊपर। What is this body? ये देह कौन सी है? If you read his first line, अगर आप उसकी पहली पंक्ति पढ़े, he says he was deity.
उन्होंने कहा वो खुदाइयत है, Deity means the Logos. और खुदाइयत का मतलब होता है लोगोस। And when you talk about Logos, और जब आप बात करें लोगोस की, Logos is always a theophany. लोगोस हमेशा एक थियोफनी होती है। That is why when Melchizedek came, इसलिए जब मलकीसेदक आया, he was in a theophany body, वो एक थियोफनी देह में था। which means that this is King Theophany. इसका मतलब ये है कि ये राजा थियोफनी है, This is not the glorified body. ये महिमा युक्त देह नहीं है। When we go and meet him in the air, जब हम जाके हवा में उससे इस्तकबाल करेंगे, we will meet him in his glorified body. हम उसकी महिमा युक्त देह में उससे मुलाकात करेंगे। And it takes a theophany and a natural body to make a glorified. और थियोफनी देह चाहिए और प्राकृतिक देह चाहिए ताकि वो मिलकर के एक महिमा युक्त देह बना सकें। This one which came in 1963 ये जो 1963 में आया, was his word body, वो उसका वचन रूपी देह था, which is his theophany. जो कि उसकी थियोफनी है। Where is his natural body? उसकी प्राकृतिक देह कहाँ है? It is in heaven. वो स्वर्ग में है। That's right. बात सही है। Where is it? वो कहाँ है? On the altar of sacrifice. कुर्बानी की वेदी पे, That lets our prayers grow through. जिसके माध्यम से हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं। Read the 5th seal. 5वीं मोहर पढ़िए। But in the rapture, लेकिन रैप्चर में this one and that one comes together. ये वाली देह और जो प्राकृतिक देह वो इकट्ठा हो जाती है। Now try to understand. I'm going to preach something. आपको समझने की कोशिश करें, मैं कुछ प्रचार करना चाहता हूँ। This is theophany. ये थियोफनी है। In the heaven, it is his natural body. स्वर्ग में उसकी प्राकृतिक देह है, And this is his mystical body. और ये उसकी आलमगीर कलीसिया है। ये उसकी भेदपूर्ण देह है। Mystical, many-membered body. ये भेदपूर्ण बहुसंख्यित देह है। Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करिए। We are the mystical body. हम भेदपूर्ण देह हैं। In heaven is his natural body. स्वर्ग में उसकी प्राकृतिक देह है, And this is his theophany body. और ये उसकी थियोफनी देह है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Now, अब when the word was made flesh, जब वचन देहधारी हुआ, all of us who are those attributes हम सब के सब जो गुण हैं, were represented in that flesh. हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो उस देह में था। That is why इसीलिए when this theophany जब ये थियोफनी identified with that flesh, उस देह के साथ जब उसने पहचान दी, it also identified with our bodies. उसने हमारी देहों के साथ भी पहचान दी, Because this life is a part of that life. क्योंकि ये जीवन उस जीवन का हिस्सा है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? May God open your minds काश खुदा ने आपके मनों को खोल दे that you can understand these things. ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। This body, which is King Theophany, ये देह जो कि राजा थियोफनी है, actually this one and that one in heaven together is a glorified. वास्तव रूप में अगर आप देखें तो ये वाली देह और जो प्राकृतिक देह जो स्वर्ग में है, वो मिलकर के एक महिमा युक्त देह बनती है। That is right. ये बात सही है। This is not the glorified body. ये महिमा युक्त देह नहीं है। Then तब this is his mystical body. ये उसकी भेदपूर्ण कलीसिया है, बहुसंख्यित। It's a many-membered body ये बहुसंख्यित देह है living in this flesh. जो कि इस देह में, शरीर में रहती है। Now why did he come in theophany? वो थियोफनी में क्यों आया? To be glorified in our flesh. ताकि हमारी देहों में वो महिमा युक्त हो। God bless you my brother. God richly bless you brother. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? You see, to be glorified, आप देखिए महिमा युक्त देह प्राप्त करने के that is लिए, why we say the hour has come that the Son of Man is again to be glorified. इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि अब घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र दोबारा महिमा को प्राप्त करे। How? कैसे? Not in that one body, उस एक देह में नहीं, but in a many-membered body. लेकिन बहुसंख्यित देह में। So now that glorification, सो वो महिमाकरण, that theophany, वो थियोफनी and this flesh और ये देह is coming together. वो इकट्ठा आ रहे हैं। That's what's happening in Revelations 10. यही हो रहा है प्रकाशित वाक्य 10 में। That word, वो वचन which is the book, जो कि पुस्तक है, has been given to you. वो आपको दिया गया है। Take it and eat it. माय गॉड, इसको ले ले और इसको खा ले। When that book is given to you, जब वो पुस्तक आपको दी गई this है, body ये देह, in word form ये देह वचन के रूप में enters your flesh. आपकी देहों में प्रवेश कर जाती है। When it enters your flesh, जब ये आपकी देह में प्रवेश कर जाता this है, theophany ये थियोफनी changes your flesh आपके देहों को बदल देता है and is glorified in you. और आप में उसका महिमाकरण हो जाता है। This is how the Son of Man will be glorified in the bride form. इसलिए इस रीति से आप पाएंगे कि मनुष्य का पुत्र आपकी देहों में उसका महिमाकरण होता है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? That is why immediately after this event happened, इसलिए ठीक इस घटना के तुरंत बाद Brother Branham kept on saying, भाई ब्रैनम ने लगातार बोलते रहे, this is the word bride.
ये है वचन रूपी दुल्हन। She's a word bride. ये वचन रूपी दुल्हन है। I think you must have read that line quite often. आपने ये पंक्ति बहुत लगातार पढ़ी होगी और Even in सुनी the message होगी। rapture, he says it later. रैप्चर वाले संदेश में नबी बाद में कहते हैं, He said she's word upon word upon word. नबी ने बताया वो वचन के ऊपर वचन के ऊपर वचन है। Not one cell of a man, another cell of a dog, or one cell of a cat. ऐसा नहीं कि एक मनुष्य का कोश है, एक कुत्ते का कोश है और एक बिल्ली का कोश है। It's all word. ये सब का सब वचन है। Why is he saying that? ये क्यों कह रहे हैं नबी? Because we have finally arrived to an age क्योंकि आखिरकार हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं when an invisible union is taking place. जबकि एक अदृश्य मिलाप हो रहा है। What is that invisible union? ये अदृश्य मिलाप क्या है? King Theophany राजा थियोफनी and his queen और उसकी रानी becoming one. एक होते हुए, Ahasuerus marrying Esther. अहसरस एस्तर से शादी करते हुए, आमीन। Boaz marrying Ruth. बोआज रूत से शादी करते हुए, They twain becoming one flesh. वे दो एक तन होते हुए। And try to understand, और इस बात को समझिए, as I was trying to explain it to you, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, his sole purpose was to unite with man. उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मनुष्य के साथ एक हो जाए। Oneness. एक था, That was his key idea. ये था उसका मुख्य विचार। And now when he came as Theophany, और जब वो आया है थियोफनी के रूप में, and in the form of Theophany, और थियोफनी के रूप में when he has come in this age, जब वो इस युग में आया है as a judge, एक न्यायाधीश के रूप में, as son of man, मनुष्य के पुत्र के रूप में, is to unite with you. ये इसलिए ताकि आपके साथ एक हो जाए। Are you understanding? आमीन। When he's come to unite with you, जब वो आया आपसे मिलने के लिए, एक होने के लिए, that body वो देह and this body और ये देह is identified as one. वो पहचानी जाती है एक। So now Jesus Christ, when he rose up on Easter morning, he rose up one body, तो यीशु मसीह जब ईस्टर की सुबह जी उठे तो वो एक देह जी उठे, which was one glorified body, एक महिमा युक्त देह है, and that same body और वही देह in a many-membered body बहुसंख्यक देह में will rise in this age. इस युग में जी उठेगी। So what happened in that Easter तो जो हुआ उस ईस्टर में is going to happen again. वो दोबारा दोहरेगा। As I was trying to tell you on Sunday, जैसे मैं आप कोशिश कर रहा था आपको संडे को बताने की, but I think some people were tired. लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ लोग थके हुए थे, Anyhow, we enjoyed it. लेकिन फिर भी हमने बहुत आनंद लिया। What happened in the cave? और गुफा में हुआ क्या? That was what was not seen by anybody. ये कुछ ऐसी चीज थी जो किसी के द्वारा देखा नहीं गया। Theophany, after entering his third pole, थियोफनी तीसरे खिंचाव में प्रवेश करने के बाद, preaching to the total lost, जो कि हमेशा से बर्बाद होने को प्रचार करना जो है, leading the captivity captive, बंधुआई को बांध ले जाना, and when he was doing that, जब वो इस कार्य को कर रहे थे, on early Sunday morning, भोर सुबह संडे की सुबह he entered the cave. वो गुफा में प्रवेश किए। Now this is his body line, अब ये उसकी देह पड़ी हुई है, cold, stiff, बिल्कुल ठंडी और अकड़ी हुई, and this King Theophany stood here. और ये राजा थियोफनी यहाँ खड़ा है। Then he laid on his body, फिर वो अपनी देह के ऊपर लेट गया, nose to nose, नाक से नाक, mouth to mouth, मुंह से मुंह, hand to hand. हाथ से हाथ। That is what happened when Elijah laid on the child. यही हुआ जब एलिया उस बच्चे के ऊपर लेटा, When Elisha laid over the child. जब एलीशा लड़के के ऊपर लेटा। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। Then this Theophany, अब ये थियोफनी when it laid on that body, जब उस देह के ऊपर लेट गया, it didn't just lay on it, केवल उसके ऊपर लेटा ही नहीं, but it became one. लेकिन वो एक हो गया, And in that, it got up. और इस चीज में होते वो उठ गया, That body just got up. वो देह उठ गई। It didn't see any corruption. उसने कुछ भी सड़ाहट को नहीं देखा। If that body didn't see corruption, अगर उस देह ने कुछ सड़ाहट को नहीं देखा, then there's no corruption in the body of Christ. तो मसीह की देह में कोई सड़ाहट है नहीं। That is why इसीलिए immediately after Passover, तुरंत फसह के बाद it's unleavened bread, अख़मीरी रोटी का पर्व होता है, which means there is no corruption. दूसरे शब्दों में कोई भी सड़ाहट नहीं है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So when that body got up तो जब वो देह जी उठी in that cave, उस गुफा में, it was one body coming up. ये एक देह है जो कि वो जी उठ रही है। But now, लेकिन अब today, आज that King Theophany has come to hover, brood over a many-membered body. लेकिन इस युग में राजा थियोफनी इसलिए आया है ताकि वो उसको बहुसंख्यक देह के ऊपर बना रहे, मंडराए। And when it broods over that, और जब वो उसको सेता है, makes love with that body, उस देह के साथ प्रेम संबंध में आता है, that body stands up. वो देह खड़ी हो जाती है। And we say, और हम कहते हैं Son of Man is glorified again. मनुष्य का पुत्र ने दोबारा महिमा को प्राप्त किया है।
So this is the age तो ये वो युग है when the Son of Man is to be glorified again. जबकि मनुष्य का पुत्र दोबारा महिमा युक्त होगा. But this time, लेकिन इस बार when he's glorified, जब उसका महिमाकरण होगा, he's glorified in the bride form. वो दुल्हन के रूप में उसका महिमाकरण होगा. Because on that Easter morning, क्योंकि उस ईस्टर की सुबह में potentially, संभावित रूप से in seed form, बीज के रूप में you were already resurrected. आप पहले से पुनरुत्थानित हो गए. In seed form, it had been done. बीज के रूप में ये हो चुका है. And as the church ages have come, और जैसे कलीसिया काल गुजरे हैं and we are in the harvest time, और हम कटने के समय में हैं, what happened in seed form जो कुछ हुआ बीज के रूप में 2000 years back 2000 वर्ष पहले, is now happening in our lives. अब वो हमारे जीवनों में घट रहा है. Is that right? ये बात सही है? Am I in the preaching of the prophet? क्या मैं नबी के प्रचार में हूँ? And that is why in this Easter, इसलिए इस ईस्टर में, in this rapture, I Yes. say plainly, मैं सीधे सीधे साफ साफ कहूंगा, इस रैप्चर में, because there's no need of preaching Easter if there's no resurrection. तो ईस्टर का प्रचार करना कोई मतलब नहीं अगर कोई पुनरुत्थान ना हो. And brother, Easter service is over for the world और संसार के लिए ईस्टर की सभा समाप्त हो चुकी है on Sunday. संडे को. Sorry, but my Easter is going on. माफ कीजिएगा लेकिन मेरा ईस्टर अभी चल रहा है. Because brother, this Easter won't end till I go there. क्योंकि भाइयों ये ईस्टर समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक मैं वहां ना चला जाऊं. You and I leave this earth. मैं और आप इस पृथ्वी को छोड़ दें. Like on the 40th day, he left Mount of Olives. जैसे 40वें दिन यीशु मसीह ने जैतून पर्वत को छोड़ दिया. In the same way, there will be some who are here इसी रीति से कुछ यहाँ पर हैं who will go up. जो ऊपर जाएंगे. Gravity will not hold them. गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनको थाम नहीं, उनको पकड़ नहीं पाएगी. Then my message of Easter and Brother Branham's message of Easter will be completed. तब मेरा संदेश ईस्टर का, भाई ब्रैनम का संदेश ईस्टर का पूरा हो जाएगा. Oh, that because you see, we are the beneficiaries. क्योंकि हम लाभ भोगी हैं. You see, there's no need of preaching something which happened 2000 years back, which has got no application today. और 2000 वर्ष पहले जो कुछ हुआ उसका प्रचार का कोई फायदा नहीं अगर उसका आज कोई उपयोग ना हो. But that is why Paul says in Corinthians, sit down please. इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, But now is Jesus risen from the dead. लेकिन अब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है. And so will those who sleep in Christ rise. वैसे ही वो भी जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे. He's tying the resurrection of Christ with the resurrection of the saints. वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को संतों के पुनरुत्थान से मिला रहा है. And so because that happened, और बताया इसलिए क्योंकि वो घटा है, this will also happen. ये भी घटेगा. That was the glorification. वो था महिमाकरण. This is glorification again. ये दोबारा महिमाकरण है. I have glorified it. मैंने उसको महिमा दी है And I'll glorify it again. और उसको दोबारा महिमा दूंगा. Except the corn of wheat go in the ground. जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में ना गिर जाए. That is Good Friday. ये गुड फ्राइडे है. It doesn't bring forth. वो लेके नहीं आता. That is Easter. और ये ईस्टर है. Going down नीचे जाना is Good Friday. वो गुड फ्राइडे है. Coming up और बाहर निकलना is Easter. ये ईस्टर है. But in that Easter, लेकिन उस ईस्टर में one seed is bringing many seeds. एक बीज कई बीजों को लेके आ रहा है. It's a many-membered body. ये बहुसंख्यक देह है. And he's telling those Greeks, the Gentiles, और वो उन यूनानियों से जो कि अन्य जातियों से कह रहा है, then you will see me. तब तो मुझे देखोगे. Sirs, we would see Jesus. श्रीमानो हम यीशु को देखेंगे. When you see me in that many-membered body, जब तुम मुझे उस बहुसंख्यक देह में देखो, in that many seed, उस बहुत सारे बीजों में, in the harvest time, कटनी के समय में, that is when you'll see me. ये वो समय होगा जब तुम मुझे देखोगे. And today I would say we are seeing Jesus और मैं कहूंगा आज हम यीशु को देख रहे हैं. in the bride form. दुल्हन के रूप में. It's a big mystery. ये बड़ा भेद है. हालेलुया. आइए आपकी भाषा में बात करते हैं, अच्छा लगता है. पिंटू टेलर ने कमीज सिली और पैंट सिल दी. सुनिए, आपने दर्जी से सिलवाई पहन ली. भाई पास में रहता है, बहुत कम पैसा लेता है. पिंटू टेलर की कमीज पहनी और उसकी पैंट पहनी, पाउडर लगाया, लाइबाय के साबुन से नहाए और चर्च आ गए. या मैं कह रहा हूं सड़क पे घूम रहे हैं. लेकिन इस सड़क पे जो घूम रहा है पिंटू टेलर की कमीज पहने हुए, ये है कौन? ये एक भेद है. जिसे ऐसे देखो, अरे अच्छा ब्रदर आए, बैठो भाई, लो पानी पियो भैया, चाय पियो. और मीटिंग के बाद और ब्रदर सुना, हाँ क्या हाल है, क्या है, कैसे, और सिस्टर सुनाइए, ब्रदर और सिस्टर. लेकिन यही तो भेद है. ये भेद है.
Amen. कि इन कपड़ों के पीछे कौन है। मानिए आपके, Amen. अब इन कपड़ों के पीछे कोई और है जो इन आंखों से नहीं दिखता। Amen. चलता तुगलकाबाद में ही है, बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है और उतरा और चला और फिर ऐसे घूमा, लेकिन ये है कौन? सच है। ऊपर से तो ये एक हमारा बिट्टू पंटू लग रहा है, जो भी कह लीजिए, लेकिन इसके अंदर है कौन? बल्कि ये कौन है? Amen. ये है अब आज का यीशु। Amen. मैं कहूंगा बहुत अभी हमारी आंखों पे स्टिल एक पर्दा है जो इस चीज को पहचानने में अभी हमारी मदद नहीं हो रही। हम अभी भी एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर के रूप में ही जाने हैं, ब्रदर सो एंड सो, सिस्टर सो एंड सो। ये एक लेवल है फेलोशिप की, सालों साल से चल रही है, आज भी चल रही है, लेकिन ये फेलोशिप की जो लेवल है थोड़ा उठेगी। Amen. सुनिए क्या होगा, ये दर्शाया गया बादल में। Amen. अलग थे 7 अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7, ये अलग अलग खड़े हैं। फिर थोड़ी की देर के बाद घुल गए। Amen. और घुल के एक चेहरा बन गया। Amen. Jesus. Hallelujah, Lord. ऐसे ही अब समय यह आ गया कि जो अलग अलग बैठे हैं, Amen. एक तन. ये घुल जाएं। Amen. और जब ये घुलेंगे, ये जिंदगियां घुलेंगी, Yes, my brother. घुलने के बाद घूमेंगी, Amen. तब इनमें एक चेहरा दिखाई देगा। Amen. 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 और वो चेहरा यही होगा जो आप यहां देख रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? Amen. अभी हमारी आंखों पे बहुत पर्दा है, बैठिए, बहुत पर्दा है। अरे आज भाई राजीव आए हैं, अरे भाई जॉन डेविड बैठे हैं आज तो, अरे भाई बैठे हैं, भाई करण पाल, नहीं तो भाई अच्छा भाई केले भी आए हैं, अच्छा अच्छा। हम यही कहते हैं? नहीं। कितनों को यह दिखाई दिया कि मीटिंग में यीशु आए, या मैं भी यीशु ही हूं? अब आपकी कुछ समझ में आ रही है? इस चीज पे आने में एक चीज और हायल आ रही है। हायल क्या आती है? रोज 10 दफा गिरते भी तो हैं यार, यीशु होते तो कहां गिरते? सच है। ये चीज और गिराती है कि यार यीशु अगर होते, यीशु मसीह तो कभी नहीं गिरे, तो हम तो रोज 10 दफा गिरते हैं, विचारों में, कामों में, चीजों में। सुबह से निकले, जाने कहां गुस्सा आ गया, जाने कहां कुछ बात हो गई, और फिर तो जब वो पुलपिट की बात आती है, फिर दिमाग में आता है यार समझ में सा नहीं आ रहा, मतलब ये पुलपिट से तो कह रहे हैं कि आप यीशु हैं, अगर हम यीशु ही होते तो ये सब करते होते। अब यही तो भेद है, ये भेद है। Amen. इस सब के बावजूद आप यीशु हैं। Amen. Hallelujah, brother. God richly bless you. My. समझ में आ रही है आपके? Amen. ये कमजोरियां बनी रहेंगी, Amen. और ये कमजोरियां क्यों बनी रहेंगी? ताकि शैतान के मुंह पे एक तमाचा तो मैं क्या कहूंगा, शैतान के लिए एक इसको बेवकूफ बनाने की चीज हो। अच्छा वो सुन रहा है, यहीं बैठा है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आएगी बात। Amen. Hallelujah. बैठिए बैठिए। Hallelujah. Wonderful. यीशु मसीह को देख के छुआ यूं, यदि तू खुदा का पुत्र है कह दे रोटी बन जाए। ये हमेशा सवाल रहा उसके। क्रूस पे भी यही है, क्रूस पे भी सवाल वहीं का वहीं है। अगर तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को उतार ले, उतार अपने आप। फिर फाइनली वो मर भी गया, अब ठंडी सांस ले रहा है। अगर होता खुदा का पुत्र तो कैसे मरता? ये ऐसा नहीं होता। मर गया, मुंह से देखो झाग निकल रहे हैं, सिर से खून निकला, यूं मरा, कमजोर जिस्म। कौन सा खुदा का पुत्र, कैसा खुदा का पुत्र। देखो अब उसकी डेड बॉडी को एक लपेट रहे हैं लिनन में, और देखो वो यूं पड़ा हुआ अपने, अरे अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा। नहीं सुन रहे हैं आप?
यूसुफ अरमतिया कब्र में ले जाया जा रहे, कोई खुदा का पुत्र नहीं। चलो दुष्ट आत्माओं, नरक में बैठ के आज शैंपेन खोलें। पहुंच गए, जो ड्रामा नबी ने खींचा, और तभी वहां ये हो गई, याद आई आपको? आमेन। और जब दरवाजा खुला है तो वो खड़े हैं, चाबी लाओ चाबी, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। तब गलती का एहसास हुआ शैतान को शायद, कि जिसे मैं एक आम आदमी समझता रहा वो आदमी नहीं, खुदा था। आमेन। अच्छा एक चीज सुनिए, त्रिएकता की शिक्षा की बुनियाद कहां है? यहीं पर। यीशु को त्रिएकता का दूसरा शख्स क्यों बनाया? क्योंकि ये खुदा नहीं हो सकता, ये आदमी है, खुदा का पुत्र है ये। खुदा तो खुदा है, बाप, नहीं समझ में? खुदा बाप, ये तो पुत्र है। पुत्र छोटी चीज होती है नहीं, ये पुत्र है। तो त्रिएकता वाली समझ शैतान ने क्यों डाली? क्योंकि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसे पुत्र कहा जा रहा है वो खुदा ही है। आमेन। वो उसके, वो क्या कहेंगे, उसके सामने एक पर्दा है, उसे दिखता नहीं कि ये जिस्म जो चल रहा है 33.5 साल, ये खुदा ही है। अच्छा, इस खुदा के दर्द होता है? इसके सिर में दर्द हुआ? जब नैन की विधवा का बेटा जिंदा हुआ, नबी ना उसके सिर में दर्द हुआ, सिर पकड़ के बैठा है, विक्स लगा रहा है। अरे भैया थोड़ा सा पैर दबा दो, भैया थोड़ा विक्स लगा दो। अरे खुदा होता यार, क्यों विक्स लगवाता? नहीं आई समझ में? जी हां, यही भेद है जो चल रहा है। आमेन। जो आज भी चल रहा है। 10 दफा गिरता है जिस्म, लेकिन जो जीन है अंदर तो कुछ और है। ये कुछ चीजें हैं जो हाय लाती हैं अपने आप को यीशु कहने से। मैं यीशु, और यीशु होता तो मैं गिरता कहां? 10 दफा तो मैं रोज गिरता हूं। जी हां, आप 10 दफा गिरते हैं, और आप ही नहीं, सभी गिरते हैं। एक नबी भी गिरा, गिरने के लिए अगर देखा जाए तो। और आपको बोलूं, अगर ह्यूमन एस्पेक्ट लें तो यीशु मसीह का भी एक वीक पॉइंट था, नबी ने बोला। और यीशु मसीह की कमजोरी थी भूख। नबी बोला इस चीज को, यीशु मसीह की कमजोरी भूख थी। सच है। और इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ को कर्ज किया और कहा कि अब तुझमें कोई फल ना लगे। ये तमाम बातें वचन में और संदेश में हैं। यीशु मसीह एज अ ह्यूमन की भूख एक वीक पॉइंट था, लेकिन उस वीक पॉइंट को तब्दील कर दिया गया थर्ड पुल में। आमेन। सोच के देखिए। एक चीज आज आपको बता दूं, मोटी बात, खुदावंद आपके जिंदगी के ताकतवर हिस्सों का इस्तेमाल कम करेंगे। आपको उड़ाने के लिए खुदावंद आपकी जिंदगी के उन हिस्सों को लेंगे जहां आप कमजोर हैं। सच है। वो कमजोर हिस्से हैं जहां से वो आपका रैप्चर करेंगे। आमेन, आमेन। क्योंकि कहानी रिडेम्पशन है भाई बहन, और रिडेम्पशन का मतलब है छुड़ौती, जिसका जो अपनी मदद नहीं कर सकता। समझ मारिए आपके। अब ये ऐसा बेसहारा बैठा हुआ, इसको नींद भी आती है, थक भी जाता है, इसको बुखार भी होता है, ये पेन बाम भी लगाता है, ये कहां से यीशु हो सकता है? सोचने दो दुश्मन को, ऐसा ही सोचने दो। और खुदा भी कहता है और दर्द देता हूं थोड़ा सा, ताकि तेरे डाउट्स कंफर्म हो जाएं। तू कंफर्म हो जा कि ये तो यीशु हो ही नहीं सकता। और फिर निकला यीशु। आमेन। क्या ही समझ में? आमेन। ये वो चीज है जो खुदावंद आज कर रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आमेन। अब मैं इसको कहूं फिर से बाय रेवलेशन, मैं कहूं अभी भी हमको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा। यीशु यहां बैठा है। आमेन। यीशु से हाथ मिलाते हैं। यीशु की देह यहां बैठी है। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते, क्योंकि मसीह की देह को नहीं पहचाना। यह देह का पहचानना एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। समझ में आ रही है? यीशु मसीह अपना पसीना पोंछते हैं नीचे,
फिर डेगची से खिचड़ी निकाल के देते हैं। नहीं आई समझ में? फिर एक टेबल बैठ के यीशु मसीह चम्मच से खिचड़ी मिला के खाते हैं थर्सडे को। फिर यीशु मसीह कहते हैं थोड़ा सा वो सलाद देना। नहीं आई समझ में? फिर यीशु मसीह ने टायर निकाला, पंचर लगाया, टायर लगा दिया। कौन है ये? यीशु। ये चीज है जिस पे हमें और आपको आना है। जो काम इस किताब का है, ये किताब मुझे और आपको इस जगह पे लाएगी। बिकॉज ब्रदर, वननेस का कोई मतलब नहीं है। वननेस वननेस कौन सी वननेस? ये कैसी वननेस है? मैं और मेरा पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और वही एकता जो पिता पुत्र में थी वही अब दुल्हन और मसीह के बीच में होगी। तो फिर आप सोच के देखिए कि जिस किस्म की एकता का मैं और आप बखान कर रहे हैं आज, तो वो एकता कौन सी है? जब वो और मैं एक हो गए तो मैं यीशु बन गया। आमेन, आमेन, आमेन। अब इसको मैं दूसरी तस्वीर में समझाऊं, हिंदी में बता रहा हूं, धीमे धीमे बैठिए। जब कोई किसी की पत्नी को छूता है वो उसे छूता है, जबकि पत्नी एक अलग बदन है, लेकिन छूना का मतलब तुमने मुझे छुआ, कि बाइबल बता रही वे दो एक तन है। आमेन। अब जो मसीह की दुल्हन को छुए का मतलब मसीह को छू रहा है। आई समझ में आपको? देखिए, यही चीज थी जिसने राजा को बड़ा दिमाग खराब किया। जब हामान रानी के सामने झुक गया, उसने कहा भाई ये मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं पकड़ ले जाओ उसको यहां से और उसको फांसी दे दो। जिस गुस्से में वो ये भी कह रहा है सील्स में, दाखरस और तेल की हानि मत करना। और आप मैसेज गौर से पढ़ें। आमेन, आमेन। क्योंकि वो देख रहा है अपने आप को इसमें। ये देखना समाओ हमारा नहीं हो पाया अब तक। हमारे सामने अभी भी कई पर्दे हैं कि हम इस मयार पे नहीं पहुंच पाए कि हम जो हैं वो यीशु हैं, जबकि हैं यीशु ही। ये बात पक्की है। जैसे काट के देखे तो अंदर खरबूजा निकलता है, ऐसी अगर इसकी सोल काटी जाए, कोई नश्तर हो कि हम सोल को काट के खोल के अंदर देख पाए, तो वो यीशु ही मिलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। ये बात बिल्कुल पक्की है। ऊपर से चाहे कितना बड़ा गोखरू कॉकल पर दिखता हो, लेकिन भाई साहब अंदर वो गेहूं है। आमेन। और ये खुदा का राज है कि उसने अपने आप को इन बदनों के अंदर छिपा रखा है। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक दिन जब वो हवा भरेगा, आमेन, जब बहुत नजदीक है वो वक्त, और जब हवा भरेगा ये जहाज उठेगा, तब शैतान नहीं समझ पाए ये हुआ क्या, वो गए कहां। सच है। माई आपके ये नहीं जाना कि वो जो थे आते थे रात के 12-12 बजे तक बैठते थे, जब दुनिया सोती है वो जागते हैं। मजाक उड़ाए बेकार लोग। तुम्हारी तो मीटिंग ही वही 9 बजे शुरू होती है। जब दुनिया सोती है उस टाइम तुम घर लौटते हो। नहीं, जब दुनिया सोती है 12 बजे तक तो गहरी नींद में सोचते हैं, उस टाइम तुम घर लौटते हो भाई। एक तो तुम्हारी मीटिंग में कोई टाइम नहीं है, फिर एक दिन सुबह निकल गए 3 बजे, रात को लौट रहे हैं 10 बजे। मैं मतलब इतना खुदा की वर्शिप, देखो खुदा की वर्शिप तो है, लेकिन इतना ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखी। हालेलुया, ग्लोरी। भैया दुल्हन होगी तो उतना ही प्यार करेगी। आमेन, आमेन, आमेन। सच्चाई तो ये है। आमेन। अच्छा, ऊपर से एक धोखा देने वाली चीज और रख दी, बाल सफेद हो गए, फिर बाल उड़ने शुरू हो गए, फिर थोड़ा झुक के चलने लगे। अरे यीशु हो ही नहीं सकता। ये तो कमजोर होता चला जा रहा है रोज बरोज। ऊपर से कुछ बीमारियां लग गई हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं। ये यीशु है भाई। अगर यीशु होता तो अपनी चंगाई खुद कर लेता। यही तो भेद है भाई। आमेन। यही भेद है। हालेलुया। और ये भेद बहुत बड़ा है आमेन। जो हमारे और आपके बीच में चल रहा है कि हालेलुया। ये फिर सब होने के बावजूद है ये यीशु ही।
Glory. अब कुछ समझ में आई आपके? Amen. कल सुबह काम करके देखना, जब घर में उठो और जो आपके घर में बच्चे हैं वो द्वार पार चुके हैं, आप विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा लिए चर्च में है या कोई अपना भाई, फोन उठाओ, करो और कहो हेलो जीसस। Amen. Amen. करके देखो कल से। Amen. कल से नाम मत बुलाओ, कहो और यीशु, प्यारे प्रभु यीशु क्या हाल है आपका? Amen. और वो कहेगा हाँ प्रभु यीशु आपका क्या हाल है? Hallelujah. नहीं कुछ सुना नहीं आपके? Hallelujah. अभी तो अकल पे हमारे पर्दा है। बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत पर्दे हैं अभी, सच बता रहा हूं, बहुत पर्दे हैं। इतना प्रचार हो गया, सब हो गया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलेंगे वो दिमाग में वो पुरानी किंग चल रही है अभी, क्योंकि अभी पूरा दिखा नहीं है ये। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि पूरा दिख नहीं रहा। और ये भी बात पक्की है कि इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये भेद खुदा के पास ही है। कौन उसके हैं और कौन उसके नहीं है, तो खुदावन अपने आप को छिपाते भी हैं। ये बात भी पक्की है। अरे यार मैंने सोचा कि ये तो यार बिल्कुल गया गुजरा जाए, हैंड रैप्चर के टाइम पे सबसे आगे हो गया, वोट निकल गया रैप्चर में। Amen. और जो बहुत आगे थे अचानक फिस हो गए, वो रह गए। समझ में आई आपके? यहूदा स्कूती को उठा के देखिए, जिंदगी भर चला, एंड में क्या हुआ? शैतान उसमें समा गया। तो ये चीजें खुदावंद के हाथ में हैं, कौन कहाँ है और कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। इसलिए हम भी बड़े जजमेंटल नहीं है। मैं तो उंगलियों पे गिन सकता हूं कि इस चर्च में कितने रैप्चर में जाएंगे। भैया मैं नहीं गिन पाया आज तक, मैं नहीं गिन सकता, मैं कभी नहीं गिनूंगा, नहीं करूंगा। ये गलती बहुत बड़ी गलती होगी। आज जो दिख रहा है बेकार, हो सकता है कल वो सबसे बढ़िया हो। यही तो कारण है खुदा ने हमें मौका दिया। अरे बेचारा अगर वो बेकार ना हो तो हम दुआ किसके लिए करें? नहीं, क्योंकि वो बेकार है। खुदा ने तो मुझे मौका दिया कि भाई मैं उसके लिए दुआ करूं। अरे मुझे भी तो दुआ करने का मौका मिला। अगर सभी अच्छे हो गए तो फिर मीटिंग बंद करो, सब अच्छे हो चुके, सब हो गए अच्छे, घर बैठो, फायदा क्या फिर मीटिंग का? फिर हम फास्टिंग प्रेयर में क्यों आए और दुआ किसके लिए करें? सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि खराब है खुदा हमें मौका देता है कि भाई हम इनके लिए दुआ करें। आपकी समझ में आ रही है? एक चीज बता दूं, अगर वो खुदा का चुना हुआ बीज है, अगर जो कि है, खुदावन जानते हैं, आज चाहे वो कितना गिरा हुआ हो, है वो फिर भी यीशु। Amen. Amen. छिपे रूप में एक दिन वो यीशु निकल के आएगा बाहर। Amen. Amen. वो प्रकट हो जाएगा और प्रकट होके दुनिया को भी दिखेगा, सबको दिखेगा, और खुदा उन्हें उड़ा के ले जाएगा। Amen. यहां पे बात आती है ईसाऊ और याकूब की। Amen. याकूब अड़ंगेबाज, याकूब धोखेबाज, ईसाऊ बाप की इज्जत करने वाला, बाप के लिए शिकार लाना, रोज नया मीट बनाना, रोज खाना खाना, बाप की सेवा में सबसे आगे। कौन? ईसाऊ। मतलब बाप अगर खुश है तो ईसाऊ से है, याकूब नहीं। लेकिन बर्थराइट किसको मिला? याकूब को, क्योंकि खुदावंद पहले से देखते आ रहे हैं कि उसका बीज कहां पर है। कैन बहुत रास्तबाज आदमी है, राइचस है, लेकिन कैन है सर्प का वंश। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात को बोलूंगा क्योंकि एक पॉइंट की बात आई और इसमें कई लोगों की समझें हमारे चर्च में भी, मैं कहूंगा दुरुस्त हों, खुदा के वजह से दुरुस्त हैं। लेकिन मैं इस बात को कहूंगा, कई बार एक धोखा है जो काम करता है। ध्यान से सुनिएगा। धोखा कुछ इस किस्म से होता है कि कुछ लोगों ने जो काम पे जाते हैं, काम करते हैं, दुनिया में जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि जहां मैं काम करता हूं हर एक कोई गवाही देता है कि ये कितने अच्छे हैं। सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और भैया हमारे यहाँ के तो भैया स्वीपर हुए, जमादार हुए, कोई हुए, सब जानते हैं। भैया मेरी गवाही सुननी है तो जाके चलो, मैं सुनवाता हूं।
मेरे ऑफिस वाले बताएंगे मैं कौन हूं, और ऑफिस वाले कहेंगे भाई इतना ईमानदार नेक आदमी हमने कभी देखा नहीं। इस चीज से धोखा खा के सोचते हैं कि भाई ये है मसीह की दुल्हन। मैसेज ध्यान से पढ़ा नहीं, क्योंकि ये सब जो आप बोल रहे हैं एसाऊ के पास था, अच्छा जीवन। ये सब जो आप कह रहे हैं कैन के पास था। मेरी गवाही सुनिए, मेरे ऑफिस में चलिए, जिन लोगों से मैं डील करता हूं आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे कि मैं क्या चीज हूं। अरे मैं तो बोलूंगा ही नहीं, 10 लोग हैं मेरे को बताने वाले कि मैं कौन हूं। लोग सोचते ही है, और वो बात भी कहेंगे नहीं सर भाई इन जैसा नेक आदमी, ईमानदार आदमी, इनके हिसाब किताब सब चीज इतने बढ़िया हैं कि हमें ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। मारिए आपके इस गवाही को ही अपने जिंदगी का सेहरा समझ के बैठ जाते हैं। यह है चीज जो होना चाहिए, इसे कहते हैं मसीह जीवन। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि यही जीवन एसाऊ के पास भी था, यही जीवन आपके कैन के पास भी था। नबी का संदेश पढ़िए, नबी समझाएंगे। समझ मारिए। इधर आपको दिखेगा चर्च में एक थोड़ा सा उल्टा किस्म का, मैं मानता हूं उल्टा है, और उसने कुछ काम किए जिसके कारण उसने कुछ नाम भी कमाया। मैं बात एक ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी गलती को प्रमोट करूं और किसी की अच्छाई को दबाऊं, मैं ये नहीं प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं कहीं और हिट कर रहा हूं, मैं इस पर हिट नहीं कर रहा। मैं यहां गलतियां प्रमोट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, कभी भी नहीं, वो सब बकवास है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। और आपने पाया कि उसने कुछ गलत किया, गलतियों में रहा, हर थोड़ी देर के बाद उसकी एक रिमांड हो जाती है, उसको डांट लगती है। तो आज जीवन तो बेकार है यार, बेकार है। मैं भी कह रहा हूं बेकार है, तो याकूब का भी तो बेकार ही था, सही बात है। लेकिन ये राज खुदा को मालूम है, कौन उसका है और कौन उसका नहीं। एक दिन अचानक वो जो गया गुजरा बेकार था, सुन रहे हैं आप, खुदावन के वचन का मुकाशवा उस पे खुल गया, और वो तो 180 डिग्री मुड़ गया और इतना बढ़िया हो गया। और बढ़िया ही क्या हो गया, अब वो मैसेज को हूबहू पहचान रहा है। आप बोलो ब्रदर ये तो वो समझ में आ रही है बात, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। ये चीज होना चालू हो जाए, समझाइए आपके। फिर ऐसे को देख के, इसके पुराने हिसाब किताब को देख के, ध्यान से सुनिएगा, इसके पुराने हिसाब किताब को देख के मैं इसका बैठ के न्याय करूं, मैं कहां तक सही होऊंगा। यहां पे अब मैं गलत हूं। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे समझना यह चाहिए कि खुदावंद के यहां कुछ भी हो सकता है। मैं कहूं कि आज यहां पे 10 याकूब बैठे हैं, अरे भैया अच्छा लोगों की क्या पॉलिसी है, ऐसे एक आध याकूब से मिल लिए कोई डिनोमिनेशन वाले, तुम्हारा चर्च यही सिखाता है, सुनिए, और उनकी गलती को देके पूरे चर्च पे चेप देते हैं। अच्छा वही तुगलकाबाद वाले हो, मास्टर लाल वाले, भाई पापा का नाम वहां लेके कहते थे, समझ मारी है आपके, गलती हुई चिप गई पूरी कलीसिया पे, तो ये है तुम्हारी कलीसिया, ये हैं तुम्हारे लोग। सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनना। और वो लोग बोलेंगे, और मैं मानता हूं कि उस जगह पे हमारा भाई गलत था, ठीक है गलत था, लेकिन भाई अगर तो वो खुदा का नहीं है तो निकल ही जाएगा, जैसे कुछ चले गए। लेकिन अगर वो खुदा का हुआ तो खुदा उसे बदलेगा। जैसे याकूब को इज़राइल बनाया, ऐसी खुदावन उसे भी इज़राइल बनाएगा।
और जब वो याकूब से इज़राइल बन जाए और एसाव एसाव ही रहे, अच्छा जीवन। समझ में आई आपके? तो ये जो बहुत पीछे था ये तो निकल के यहां पहुंच गया। ये है कुछ जो कि खुदावंद की कलीसिया में हो रहा है। आज से नहीं, जाने प्रेरितों के टाइम से आप लगा लीजिए, बल्कि बाग एदन से लगा लीजिए, ये चीज चल रही है। और क्योंकि लोग खाली अच्छे जीवन को देखते हैं, उनके दिमाग में वो चीजें बैठी हुई हैं, ये भेदी बन के रह जाता है उनके सामने, कौन खुदा का है और कौन नहीं है। मैंने अपनी कलीसिया में बार बार कहा और आज फिर कह रहा हूं, अगर आपको मिले कि कोई बहुत बेकार है, मैं तो कहूं आपको मौका मिल गया उसके लिए दुआ करने का। बेकार तो खैर फाइनली उस दिन ही प्रूव हो जाएगा, या तो दुनिया में चला गया, खत्म हो गया, या जब रैप्चर हुआ तो गया नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्यों दूसरे का न्याय करें? हम क्यों अपना मुंह खोलें, ना जाने उसके विरोध में जो कि बाद में प्रूव हुआ कि ये तो खुदा का है। समझ मारिए आपके? इसलिए बड़ी प्यारी सी बात है जो नबी ने सिखाई कि आप उनके लिए दुआ करें। तो हम जजमेंटल नहीं हैं, उंगलियों पे में हम गिन ले सकते हैं कि भाई ये कौन कौन है जो रैप्चर में जाएगा। भाई आप गिनिए अपनी उंगली पे, आपकी 5 ही तो उंगलियां हैं, तो 5 ही जाएंगे। नहीं आई समझ में? लेकिन ये चीज हम लोग नहीं करते। मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूं? यहां कई जिस्मों के अंदर यीशु मसीह बैठे हैं। सन 2004 में कुछ लोग यहां से निकल के गए, कुछ लोग, मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, और उन्होंने एक तोहमत लगाई, बड़े आत्मिक दिखे उस कुछ समय के लिए, कि इस कलीसिया के ऊपर तो इकाबोद लिखा है। चलिए, आप छोड़ के चले गए सन 2004 में। अब जिस पे इकाबोद लिखा है, आज क्या हाल है उस कलीसिया का आप खुद ही जानते हैं। जिन्होंने कहा कि इकाबोद लिखा है, उनका क्या हाल हुआ? उनकी चर्च कम से कम 5 हिस्सों में टूट गई, बल्कि ज्यादा ही। और उनका जीवन क्या है, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, मुझे भी शर्म आती है, क्योंकि कई कई चीजें हैं जो आप बोल नहीं सकते। कई औरों ने बताई जिनको यहां रखना ठीक नहीं है। तो ये तमाम चीजें, जजमेंटल हो जाना, लोगों पे न्याय सुना देना, ये तो बेकार है, बकवास है। ये तमाम चीजें ब्रदर, इसमें समय ना गुजारें। अपने आप को देखो और वचन के साथ जोड़ो और इस भेद को समझो कि खुदावंद कभी भी किसी को बचा सकता है। इसीलिए इसे भेद कहा जाता है, इसीलिए इसे एक भेद पूर्ण बदन कहा जाता है, जिसे मिस्टिकल बॉडी कहते हैं। अब ये कौन कौन है, ये खुदावन जानते हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन खुदावन के पास है। लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर वो भेदपूर्ण देह यहां पर है तो मसीह भी यहीं पर है। Amen. God really bless you. Amen. I'm coming to my English. वापस अंग्रेजी में आता हूं। So this is a many-membered body. So ये बहुसंख्यक देह है, in which Jesus Christ our Lord is hiding. जिसमें प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं। And this Jesus, और ये यीशु, which is the theophany, जो कि थियोफनी है, is coming to this many-membered body इस बहुसंख्यक देह के पास आता है to unite with it, ताकि उसके साथ एक हो जाए, to be glorified. ताकि महिमाकरण हो। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Amen. आमीन। Now, let's try to understand something here. आइए यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। He said, when the 7 seals were opened, नबी ने बताया जब 7 मोहरें खुली, that is when my message came. ये वो समय है जब मेरा संदेश आया। So you see, he was waiting for his message. तो आप देखिए वो अपने संदेश का इंतजार कर रहे थे। And when the seals were opened, that was his और message. जब मोहरें खुली तो ये मोहरें खुलना ये उसका संदेश था। Immediately when he started his message, तुरंत जब उसने अपना संदेश शुरू किया, he started losing popularity. उसने प्रसिद्धता छोड़ दी। Many started leaving him.
कई उसको छोड़ने शुरू कर दिया। You see, when the real message comes, आप देखिए जब वास्तविक संदेश आता है then the reaction start. तब प्रतिक्रिया चालू होती है। Then the seed starts showing its own character, तब जो बीज है अपने ही चरित्र को दिखाना शुरू कर देता है and the make believer starts showing his. और जो बनावटी विश्वासी वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। But the real seed is tied to the word. लेकिन जो वास्तविक बीज है वो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And I saw another mighty angel. I'm now reading Revelations 10. अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। And I saw another mighty angel फिर मैंने एक और बलिष्ठ दूत को देखा come down from heaven. स्वर्ग से नीचे उतरते हुए। Listen carefully the next line, ध्यान पूर्वक अगली पंक्ति को सुनिए, because most of us have not read it carefully. क्योंकि हम में से अधिकतम लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है। Clothed with a cloud. बादल को ओढ़े हुए। The cloth he's wearing is not just on the head. जिस वस्त्र को वो पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, वो केवल सर के ऊपर नहीं है। Clothes are worn over the body. जो वस्त्र है वो तो देहों में उड़ाया जाता है, पहनाया जाता है। That cloud wig जो बादल वाला विग है is seen over his face. वो उसके चेहरे पे दिख रहा है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है he is clothed with a cloud. वो बादल को ओढ़े हुए है। That means that cloud is over his whole body. इसका मतलब ये है कि बादल उसकी पूरी की पूरी देह के चारों ओर है। Not just over his head. केवल उसके सर के ऊपर नहीं है। But why do you see it only till the head? लेकिन आप केवल सर तक क्यों देखते हैं? Because the cloud, the rest of the part, क्योंकि बादल का जो अगला हिस्सा है, बाकी हिस्सा जो है was on earth. वो पृथ्वी पे था। This was in the sky. ये था आकाश में। This was in the sky. ये आकाश में था। Where the cloud is seen over the face. ताकि बादल जो है वो चेहरे में दिख रहा है। But the same cloud लेकिन ये ही बादल is over the body. वो देह के ऊपर भी है। Where is the body? देह कहाँ है? Here. यहाँ। Then that same cloud फिर वही बादल is covering you. आपको ढांके हुए है। You're covered with the same cloud. आप उसी बादल के द्वारा आप ढके हुए हैं। And if that cloud was made by 7 angels, Oh my God! अगर वो बादल 7 दूतों के द्वारा बनाया गया, then 7 angels are surrounding you. तो 7 दूत आपको घेरे हुए हैं। This bride is under the anointing of the 7 angels. ये दुल्हन जो है 7 दूतों के अभिषेक के अंदर है। Can you catch that mystery? क्या इस भेद को पकड़ पा रहे हैं? The 7 spirits are surrounding you. 7 आत्माएं आपको घेरे हुए हैं। And you are wearing that cloud. You're in that cloud. आप उस बादल के अंदर पाए जाते हैं। आप उसको ओढ़े हुए हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That is why he said, इसलिए उसने कहा clothed with a cloud. बादल ओढ़े हुए, Not just on the face, केवल चेहरे पे नहीं, the whole body. पूरी की पूरी संपूर्ण देह। But the most important point is, लेकिन सबसे अहम बात यह है, only the head is seen. केवल सर दिख रहा The है, rest of the body is not seen. बाकी देह दिख नहीं रही। But in the scripture, लेकिन वचन में he's seeing the whole body. वो संपूर्ण देह को देख रहा है। But when it really happened, लेकिन जब ये वास्तविक रूप में घटा, the body vanished. देह गायब हो गई। God bless you, brother. God bless you. Only the head part is seen. केवल सर वाला हिस्सा दिख रहा है। Where did the body go? देह कहाँ चली गई? My God, my God. Hallelujah. That body went to identify. वो देह गई पहचानने, To identify with a many-membered body. बहुसंख्यक देह से पहचान करने। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? It hid behind some flesh. कुछ देहों के पीछे वो छुप गई। So he, the head, was only seen. So वो जो कि सर है वो केवल वही दिखा, Not the rest of the body. बाकी देह नहीं। Sit down. Let me say something. कृपया बैठ जाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। This is not a beheaded body. ये सर कटी देह नहीं है। The head and the body are together. जो सर है और देह है वो एक साथ है। 26 miles high. 26 मील ऊंचा। You saw the head. 26 मील ऊंचे वाली हालत में आपने सर को देखा। You saw the face. आपने चेहरा देखा। But from that till the ground, लेकिन उस जगह से नीचे पृथ्वी तक के you don't see anything. आपको कुछ नहीं दिखता। It's a gap. ये एक गैप है, which should have been filled by his body. जिसको कि उसकी देह के द्वारा भरा जाना चाहिए था। But it is just an empty gap. लेकिन ये केवल एक खाली जगह है, खाली हिस्सा सा दिखता Why है। is it made an empty gap? ये खाली अंतराल क्यों बनाया गया? God hid it. खुदा ने उसको छुपा दिया।
God hid it. खुदा ने उसको छुपा दिया. He only showed the face part, उसने केवल चेहरे वाले हिस्से को दिखाया, but he didn't show the body. लेकिन देह को नहीं दिखाया. Okay. The Bible also says, बाइबल ये भी कहती है, his feet as pillars of fire. उसके पांव आग के खंभों के से. Show me the feet. मुझे पैर दिखाइए. Show me the feet. मुझे पांव दिखाइए. You can't see it. आप पैरों को देख नहीं सकते. In the real picture, you can't. वास्तविक तस्वीर में नहीं. And says his feet like pillars of fire. और बाइबल में लिखा है उसके पांव आग के खंभों के से. That means if you want to see his feet, you have to see pillars of fire on earth. तो इसका मतलब अगर आप उसके पांव देखना चाहें तो आपको पृथ्वी पर आग के खंभे देखने पर चाहिए. And wherever that pillar of fire would be moving, that feet would be moving. Oh my God. और जहां कहीं वो आग का सतून जा रहा होगा, वहां उसका पांव जा रहा होगा. Because the Bible says, बाइबल कहती है, his feet like pillars of fire. उसके पांव आग के खंभों के से. Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं आप? That means where that fire is moving, इसका मतलब यह है जहां कहीं वो आग जा रही है, that feet is moving. वो पांव चल रहा है. Can you catch that mystery? क्या इस भेद को पकड़ पा रहे हैं आप? Which is happening in our age. जो कि हमारे युग में घट रहा है. His feet like pillars of fire. उसके पांव आग के खंभों के से. And his body clothed in a cloud. और उसकी देह बादल ओढ़े हुए. Neither you can see that cloud, ना ही आप उस बादल को देख सकते हैं, neither you can see that body. ना ही आप उस देह को देख सकते हैं. You just see the head. हम केवल सर को देखते हैं. What happened? क्या हुआ? He hid it from the world. उसने संसार से उसको छुपा दिया. He hid his body from the world. उसने अपनी देह को पोशीदा कर दिया संसार से. This is the mystery of Christ. ये मसीह का भेद है. And why did he hid it? और क्यों छुपाया उसने? Because he's going to identify that hidden part in a bride. क्योंकि वो दुल्हन में उस छुपे हुए हिस्से की पहचान देगा. Why did he hid it? क्यों छुपाया उसने? It was the unwritten word. ये अलिखित वचन था. Man, My God, my if God. God can help you catch it. अगर खुदावन आपकी मदद करे कि आप इस बात को पकड़ पाए. It was not written. वो लिखा हुआ नहीं था. It was hidden. ये छुपा हुआ था. Hallelujah. And that is why और इसीलिए he hid that part उसने उस हिस्से को छुपा दिया which was hidden in the scripture. जो कि वचन में, धर्मशास्त्र में छुपा हुआ था. It was not written openly. ये साफ रीति से लिखा नहीं गया था. He hid that part. उसने उस वाले हिस्से को छुपा दिया. Yet that part is there. फिर भी वो हिस्सा है. And it is clothed with a cloud. और वो बादल ओढ़े हुए हैं. Amen, amen. My Jesus, I love you, Lord. Can you understand this? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? Then if you are a part of that body, तो अगर आप उस देह का हिस्सा है, that cloud surrounds you. वो बादल आपको घेरे हुए हैं. You're surrounded by the cloud anointing. आप उस बादल के अभिषेक से घिरे हुए हैं. Now if you read Hebrews, it says, अगर आप इब्रानियों पढ़े तो वहां लिखा है, we are surrounded by a cloud of witnesses. वहां लिखा हुआ है, हम गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं. Is a cloud surrounding you? क्या एक बादल आपको घेरे हुए है? A cloud of witnesses. गवाहों का बादल. That is scripture. ये वचन है. Now here the witnesses are the seven spirits, अब यहाँ पर जो गवाह हैं वो 7 आत्माएं हैं, which is one Holy Spirit, जो कि एक पवित्र आत्मा है, which is the witness, जो कि गवाह है, the testimony of a true witness. एक सच्चे गवाह की गवाही. In that message, if you read, अगर आप उस संदेश को पढ़े तो आपको मिलेगा, who is the witness? गवाह कौन है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा. And the Holy Ghost और पवित्र आत्मा is 7 spirits. वो 7 आत्माएं And हैं. those 7 spirits और वो 7 आत्माएं are the 7 angels, वो 7 दूत हैं, which made the cloud. जिन्होंने मिलकर के बादल को बनाया. So when you're surrounded by that cloud, तो जब आप उस बादल से घिरे हुए हैं, you're surrounded by 7 spirits. आप 7 आत्माओं से घिरे हुए हैं. Surrounded by 7 spirits would mean being surrounded by God Himself, the witness. 7 आत्माओं से घिरे का मतलब आप खुदा स्वयं जो कि गवाह है उससे घिरे हुए हैं. That witness is surrounding you. वो गवाह जो है आपको घेरे हुए है. You are under the anointing of the witness. आप गवाह के उस अभिषेक के अंदर पाए जाते हैं. Then if the witness is surrounding you, तो अगर गवाह आपको घेरे हुए है, who has seen everything, जिसने सब कुछ देखा है, My God, hallelujah, who knows exactly जो सही मायने में जानता है from which direction the angels came, किस दिशा से दूत आए, who knows the accurate time, वो जो कि बिल्कुल सही समय जानता है, who know how Brother Branham was caught up, जो इस बात को जानता है भाई ब्रैनम कैसे ऊपर उठाए गए, because the Holy Ghost saw everything, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हर एक चीज को देखा. and that witness is with you. और वो गवाह आपके साथ है. Then the witness will take you to the Catalina, फिर वो गवाह आपको कैटलिना पर्वत पे ले जाएगा.
And the witness who's surrounding you और गवाह जो कि आपको घेरे हुए है, will show you those things वो आपको वो चीजें दिखाएगा as a first person. प्रथम पुरुष के अनुसार। And when you see it, और जब आप उसको देखेंगे, the witness would also say, गवाह ये भी कहेगा, you are there. आप है वो, आप वहां थे। God bless you brother. Amen. Oh, Amen. That is the biggest part. ये सबसे बड़ा हिस्सा है। The witness would say, गवाह कहेगा, you are there. आप वहां थे, I saw you there. मैंने आपको वहां देखा। And it's the testimony of a true witness. और ये सच्चे गवाह की गवाही है। Then if you are there, अगर आप वहां पे हैं, you are represented in the cloud. आप बादल में आपका प्रतिनिधित्व है, And the witness is saying that और गवाह इस बात को कह रहा है, the case is closed. तो जो मुकदमा है वो खत्म, खारिज है। Now there is no condemnation. अब कोई दोषारोपण नहीं है। Now listen how I'm going to say it. आप देखिए मैं कैसे कहूंगा, Just see how I'm going to say it. आप देखिए किस तरह से मैं कहूंगा। There is therefore now no condemnation अब उन पे कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है who are in Christ. जो कि मसीह में है। Amen, amen. Did you catch it? क्या आपने पकड़ा? There's therefore now no condemnation इसलिए अब कोई भी दंड की आज्ञा उनके ऊपर नहीं है who are in this Christ, जो कि इस मसीह में पाए जाते हैं, in Christ Jesus. मसीह यीशु में। By one Spirit we are baptized into one body. एक आत्मा के द्वारा हमारे एक देह में बपतिस्मा हुआ है। Then you're surrounded by that Holy Ghost. फिर आप उस पवित्र आत्मा से घिरे हुए हैं। Then what is the Holy Ghost today? तो पवित्र आत्मा आज क्या है? What is the baptism of Holy Ghost? पवित्र आत्मा बपतिस्मा आज क्या है? The baptism of the cloud. बादल का बपतिस्मा। God bless you my brother. My Jesus. Hallelujah. What is the evidence of the Holy Ghost? पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? The seven spirits bearing witness of seven seals in your life. सात दूत आपके जीवन में सात मोहरों का प्रमाण और गवाही देते हुए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? That is the evidence. ये है प्रमाण। Not just sanctification. केवल पवित्रीकरण नहीं, Not just restoration of gifts. केवल वरदानों का बहालीकरण नहीं, But seven spirits लेकिन सात आत्माएं bearing witness with your spirit. आपकी आत्मा के साथ गवाही देते हुए, Uttering the seven voices. सात शब्दों को उच्चारित करते हुए, Which are the mysteries in the seven seals. जो कि सात मोहरों में भेद हैं And being fulfilled through your life. और आपके जीवन के माध्यम से पूरी होते हुए। That is the evidence. ये है प्रमाण, Nothing else. कुछ और नहीं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Sit down for a minute. एक मिनट के लिए बैठ जाइए। Now you caught it. क्या पकड़ में आई ये बात? Clothed with a cloud. बादल ओढ़े हुए And a rainbow was on his head. और मेघधनुष उसके सर के ऊपर था। It is there. We saw that part, the nacreous center and all that. हमने वो नेक्रियस सेंटर, हमने केंद्र देखा था। And his face was as it were the sun. और उसका जो चेहरा है वो सूर्य की तरह है। And his feet as pillars of fire. और उसके पांव आके खंभों के से। And he had in his hand a little book open. और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। Where are his hands? हाथ कहाँ है उसके? You see, John is seeing the full personality. आप देखें, यूहन्ना तो संपूर्ण शख्सियत को देख रहा है। Right hand, left hand, book, body, feet, everything. दाहिना हाथ, बायां हाथ, पांव, सब कुछ देख रहा है। Where is it all vanished? ये सब गायब कहाँ हो गया? In his hand there's a book. और उसके हाथ में एक खुली हुई पुस्तक है। But when it happened, really, I don't see any hand. लेकिन जब वास्तव रूप में हम तस्वीर में देखें तो वहां पे हमें हाथ दिखते नहीं है। Everything became hidden. हर एक चीज छुप गई। From here downwards, there is a curtain. यहां से नीचे आप पाएंगे एक पर्दा आ गया। And it would take an apocalypse, an unveiling to open this other part. और ये एपोकैलिप्स की जरूरत होगी, ये बेपर्दा करना होगा ताकि वो अगला हिस्सा, बाकी का हिस्सा दिख सके। Because this is the first part. क्योंकि ये पहला हिस्सा है। The other part was hidden. बाकी हिस्सा जो है वो छुपा हुआ है। And in this age, और इस युग में by the opening of the word, वचन के खुलने के माध्यम से he was opening what the body is. वो ये खोल के बता रहा था कि देख क्या है। Amen. Then तब he starts talking in 1965. तब वो 1965 में बताना शुरू करते हैं। Luther was the feet. लूथर पांव था, Wesley was the hands. वेस्ली हाथ था, Then the tongue. फिर जुबान, And he's coming to the whole body. और फिर वो पूरी की पूरी देह का विवरण दे रहे And हैं। Christ is revealing his own word. और मसीह अपने वचन में प्रकट होते हैं। He इस वाले shows संदेश the में formation of the whole body. वो पूरी देह के रूप को समझाते हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Not just the head, केवल सर नहीं, the whole body. पूरी की पूरी देह, A mysterious body. एक भेदपूर्ण देह। World cannot see it संसार जगत उसको देख नहीं सकता, because God has veiled it. क्योंकि खुदा ने उसके ऊपर पर्दा रख दिया है। You are the veiled one. आप पर्दा युक्त हैं।
You are behind a veil. आप पर्दे के पीछे हैं। God has hidden you from the world. खुदा ने आपको संसार से छुपा दिया है। Are you listening, brother? क्या सुन रहे मेरे भाई? And that is why below this nothing is seen. इसलिए आप पाएंगे इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिखता। Even in that whole picture, यहाँ तक कि उस संपूर्ण तस्वीर में भी you can't see the hand. आप हाथ को नहीं देख सकते। Hand is there. हाथ वहाँ है, Book is also there. पुस्तक भी वहाँ है। You can't see any book. आप यहाँ पे कोई पुस्तक नहीं देखते। Anywhere, can you see some book? क्या कहीं पर आपको कोई पुस्तक दिख रही है? You can't see the book. आप पुस्तक देख नहीं सकते। It's all hidden. ये सब का सब छुपा हुआ है। Yet it is there. फिर भी वो वहाँ पे है। Yet when the seven angels came, seventh angel was handed over the book. फिर भी जब वो आए तो सातवें दूत को वो पुस्तक सौंपी गई। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? It's all hidden. ये सब छुपा हुआ है। Now catch this. अब इसको पकड़िए। And he had in his hand a little book open. और उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई पुस्तक थी। And he set his right foot on sea and left foot on earth. और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पे और बायां पृथ्वी पे रखा। John is seeing every motion. यूहन्ना हर एक काम को, हर एक मोशन को देख रहा है। But when it happened really, लेकिन ये जब वास्तविक रूप में घटा, you just see the face. आप केवल चेहरा ही देखते हैं। Cried with a loud voice. बड़े जोर के शब्द से चिल्लाया। Well, that happened. ये हुआ, There was a blast. एक धमाका हुआ। Remember that? क्या आपको याद है? As when a lion roareth. जैसा कि जब सिंह गरजता है। And when he had cried, और जब वो चिल्लाया, seven thunders uttered their voices. तो सात गरज उन्होंने अपने शब्द को दिए। Now that didn't happen on that day. अब ये उस दिन तो नहीं हुआ। That happened from 18th to 24th March. ये 18 से 24 मार्च के बीच में हुआ। Seven thunders uttered their voices. सात गरज उन्होंने अपने शब्द को दिया। Look where the thunders came from. आप देखिए गर्जन कहाँ से आए? Not from heaven, स्वर्ग से नहीं, from earth. पृथ्वी से। Amen. Because in heaven there was silence. क्योंकि स्वर्ग में सन्नाटा था। You know the message. आप संदेश जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Seven thunders uttered their voices. तो सात गरज उन्होंने अपने शब्दों को दिया। I was about to write, मैं उसको लिखने पर था। and I heard a voice from heaven saying, और मैं स्वर्ग से एक आवाज सुनी ये कहते हुए, seal up those things. उन चीजों को गुप्त कर दे। Seal up those things. उन चीजों को मुहर बंदित कर दे। He sealed it up. उसने मुहर बंद कर दिया। God bless you, brother. Amen. God bless Try you. to understand that. इसको समझने की कोशिश करिए। Don't write it. इसको लिख मत। Oh my. Don't Yes. write it. इसको लिख मत। It is the hidden part. ये छुपा हुआ हिस्सा है। It is the revelation of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। Now, you tell me. अब आप मुझे बताइए। Here's a clue. यहाँ पर एक सुराग है। Who recognizes the head? सर को कौन पहचानता है? The body. ते। Who really understands this face? इस चेहरे को वास्तविक रूप में कौन समझता है? The body. ते। The rest of them, बाकी it's an information. उनके लिए सूचना ही है केवल मात्र। But for others, लेकिन बाकियों के लिए this is not a picture. ये तस्वीर नहीं है। This is a brain ये एक दिमाग है which keeps on sending signals, जो कि उन संकेतों को भेजता रहता है। impulses. ये उन धमनियों को भेजता रहता है। And those impulses transfer into your actions. और वो धमनियां आपके कामों में कार्यान्वित हो जाती हैं। These actions are because of impulses from him. ये जो काम है ये उस धमनियों की वजह से जो कि वहां से आती हैं। धमनी नहीं ब्रदर, धमनी तो हो गई ब्लड वेसल। संकेत कहिए आपकी, या नव इंपल्सेस का मतलब ये हो गया, क्या बोलेंगे इसकी हिंदी? सूचनाएं, सूचनाओं की प्रतिक्रियाएं जो आपके पास भेजी जाती हैं इसके पास से। आमेन। जब ये सूचनाएं भेजता है Amen. तो आप एक्ट करते हैं। यस। ऐसी सूचनाओं की क्या बोलेंगे, वेव को क्या बोल सकते हैं? ये कि लहरें, तरंगे तरंगे जब आती हैं, Amen. and always wave is defined as a disturbance. और हमेशा जो तरंग है वो एक गड़बड़ी से दिखाया जाता है। You heard about that word? क्या आपने इस शब्द के बारे में सुना है? So a disturbance begins. So एक गड़बड़ी चालू हो जाती है। A disturbance which brings an action. एक ऐसी गड़बड़ी जो कि एक प्रतिक्रिया को, एक काम को लेके आती But है। it's a massive signal from the head to the body. लेकिन ये संदेश वाला संकेत है जो कि सर से देह में आता है। A body एक देह which cannot be seen. जो नहीं दिख सकता, Cannot be seen. जो दिख ही नहीं सकता, Covered with a cloud. बादल से उड़ा हुआ है, Cannot see it. अब उसको देख नहीं सकते, Nobody knows. कोई नहीं जानता। It's just an empty space. केवल एक खाली हिस्सा है, But it is not empty. लेकिन ये खाली खला नहीं है।
It is not empty. ये खाली खला नहीं है, It is the body. ये देह है। Because John saw the whole body. क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी देह को देखा And the picture doesn't show that. और तस्वीर उसको नहीं दिखा था, It became hidden. वो छुप गया। Are you understanding? क्या समझ में आ रही है? So he said, seal it up. इसको मोहर बंधित कर दे, Don't write it. इसको मत लिख। And then in verse 5, और फिर 5वीं आयत में, and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. और जो स्वर्गदूत जो भैया कहीं पढ़ देंगे 5वीं आयत, और फिर जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया And swear by him that liveth forever and ever, और जो युगानुयुग जीविता रहता है उसकी शपथ खाई और कहा, who created heaven and the things that therein are. जिसने वो चीजें जो कि सृजी। You read in Hindi, brother. और जो युगान युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा। Why is he bringing creation in this chapter? इस अध्याय में वो सृष्टि को क्यों लेके आ रहा है? Did you read it? क्या पढ़ा आपने इसको? He's qualifying by whom he's swearing. वो उस बात को समझा रहा है किसके माध्यम से वो शपथ खा रहा है। किसकी किसकी शपथ खा रहा है? He's taking an oath in the name of the Creator, वो सृष्टिकर्ता के नाम में शपथ खा रहा है, who created everything. जिसने सब कुछ को सृजा। Why is he bringing that Creator? वो सृष्टिकर्ता को क्यों लेके आ रहा है? Because in Revelation 10, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में there is a creation वहां पर एक सृष्टि है which has been newly created. जो अभी बिल्कुल नई रीति से बनाई गई है। The New Jerusalem, नया यरूशलेम, not the old one, पुराना नहीं, but the New Jerusalem, लेकिन नया यरूशलेम who has created. जिसने सृजा है। And he's taking an oath of the Creator, और सृष्टिकर्ता की वो शपथ खा रहा है, not by the first person, प्रथम पुरुष के अनुसार नहीं। but he's taking, what I'm trying to say is, the second person is not taking the oath in the name of the first person. दूसरा शख्सियत पहले शख्सियत की गवाही की शपथ खा के नहीं बोल रहा। You see, Trinitarians love these verses. आप देखें जो त्रिएकता मानने वाले वो ऐसी आयतों को बड़ा पसंद करते हैं। But what is it actually? लेकिन वास्तव रूप में है क्या ये? He swore by himself. वो स्वयं की शपथ खा रहा है, He swore by himself. वो अपनी शपथ खा के कह रहा है। And who is this? और ये कौन है? The Logos, लोगोस, the accepted sacrifice. जो कबूल हुई हुई कुर्बानी है। He's swearing by himself. वो अपनी शपथ खा के कह रहा है। The atonement is taking his own swearing. प्रायश्चित जो है वो अपनी शपथ खा रहा है, Who created everything? जिसने सब कुछ को सृजा। The time shall be no longer. कि अब और देर ना होगी। What for? किस चीज के To लिए? finish the plan. ताकि योजना समाप्त की जाए। But in the days of the voice of the seventh angel, वरन 7वें दूत के शब्द देने वाले दिनों में the mystery of God shall be finished. खुदा का भेद पूरा हो जाएगा। It is when this mighty angel descends ये तब होगा जब ये महाबली दूत नीचे उतरेगा that the seventh angel receives his ministry कि 7वां दूत अपनी सेवकाई को प्राप्त करेगा and his message. और उसका संदेश। And if the seventh angel receives his ministry, और अगर 7वां दूत अपनी सेवकाई को प्राप्त करेगा, what about the rest? बाकियों के बारे में क्या? Which is the bride of जो Christ. कि मसीह की दुल्हन है। The ministry of the bride begins here. दुल्हन की सेवकाई यहाँ शुरू होती है। Is that right? क्या बात सही है? Not on a good life. एक अच्छे जीवन को लेकर के नहीं, Not just sanctification. केवल पवित्रीकरण नहीं। That is Wesley's message. ये तो वेस्ली वाला संदेश है। Not just restoration of gifts, केवल वरदान का बहालीकरण नहीं, but the opening of the word. लेकिन वचन का खुलना खुलासा। That is the ministry of the bride today. ये दुल्हन की सेवकाई है आज। Especially the fivefold ministry खास तौर से 5 प्रकार की सेवकाई। is to pick up the book वो ये है कि पुस्तक को ले and preach the book. और पुस्तक का प्रचार करे। And when you preach the book, और जब आप पुस्तक का प्रचार करते हैं, book will bring forth of its kind. पुस्तक अपनी किस्म को लेके आएगी। And the seed lays in the presence of the son, और जो बीज है वो उस पुत्र की उपस्थिति में रहता है and the seed gets ripened up. और बीज जो है पक जाता है। It's very simple. ये बहुत ही साधारण है। You don't have to preach an outstanding message. आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग संदेश प्रचार करने की जरूरत नहीं है। Just preach this message केवल इस संदेश का प्रचार करिए and you'll see the reaction. और आप प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। You will. आप देखेंगे The one who is not the seed, वो जो कि बीज नहीं है he will show himself. वो अपने आप को दिखा देगा। वो दिखेगा ही। हाँ जी, कुछ दिन सील्स का प्रचार करते चले चलो हाँ जी, और आपको प्रतिक्रिया दिखना शुरू हो जाएंगी। जो सीड नहीं है वो रंग दिखाएगा, जो बीज है वो भी रंग दिखाएगा। You see, you don't have to dilute the message.
आपको संदेश को पतला करने की जरूरत नहीं है, Just preach what the prophet said. केवल वो प्रचार करिए जो नबी ने प्रचार किया। And when you start doing that, और जब आप ये करना शुरू करते हैं, you will find reactions happening. आप प्रतिक्रियाओं को होते हुए देखेंगे। It is very simple. बड़ा साधारण बात है। Let that voice be preached to you. होने देखिए वचन आपको प्रचारा जाए, And you just keep sitting and let it come like a spray on you. और आप बैठे रहें और वो एक स्प्रे की तरह आपके ऊपर आ जाए। You're laying in his presence. आप उसकी मौजूदगी में पड़े हुए हैं। आप आ गए, बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठे रहो। अब उसने अपनी स्प्रे चालू कर दिया आपके गॉड ऊपर। ब्लेस यू माय ब्रदर। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है कुछ ना लग रहा हो बाहर से, बहुत कुछ हो रहा है। आमेन आमेन आमेन। अभी पिछले 1 घंटे में आप बहुत बदल चुके हैं। ओह माय गॉड, हालेलुया। आपको मालूम भी नहीं, आमेन। पिछले 2 घंटे के अंदर अंदर आप यहां थे और जाने कहां पहुंच गए। गॉड रिचली ब्लेस यू माय ब्रदर। आमेन, आई बिलीव इट। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमारी आंखों पे बहुत पर्दा है, हमें बहुत कुछ जो दिखना चाहिए नहीं दिख रहा, लेकिन ये हो रहा है ब्रदर, ये हो रहा है सिस्टर, ये हो रहा है। आमेन आमेन। आप सोचे भाई मैं तो बैठा हूं, मीटिंग चल रही है, प्रचार चल रहा है, मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, वो बोलते हैं मैं सुनता हूं, कभी वो ड्रॉ करते हैं मैं लिख लेता हूं, ये चल रहा है। चल क्या रहा है? आप बदल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यही तो लेइंग इन द प्रेजेंस है। इट इज वेरी सिंपल, बड़ा साधारण है। जस्ट ले इन हिज प्रेजेंस, केवल उसकी मौजूदगी में बने रहे। अब इसमें मशक्कत केवल इतनी है, आ जाओ। माय गॉड, गॉड रिचली ब्लेस यू माय ब्रदर, माय जीसस आई लव। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। आमेन आमेन। अब कैसे करो? पहुंच जाओ, थके पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, टूटे जिस्म पहुंचो, पहुंच जाओ। आमेन। और पहुंच के बैठ जाओ, तो चुप बैठो, फिर वो चालू करेगा। ये मैं नहीं, ये आमेन। ये बारिश आना शुरू करेगा। थोड़े समय के बाद आपको पता लगेगा कि वो थकावट चली गई, वो चीजें चली गई। आमेन आमेन। और थोड़े समय बाद आपको कुछ लगने लगेगा, यार मैं तो कुछ और बन गया। हालेलुया। ये लगा की बात नहीं है, ऐसा होता ही है, ऐसा होता है। अब ये सेशंस हैं, आमेन आपके इरेडिएशन के सेशंस। आमेन। गॉड आप ब्लेस यू। इरेडिएट हो रहे हैं, ये आपके सेशंस चल रहे हैं। हो सकता है किसी दिन ये सेशन पूरी रात चल जाए, ऐसा भी दिन आ सकता है। अभी लास्ट सैटरडे ऐसा ही चला, ऐसा मन कर नहीं रहा था कि इसको बंद गॉड करें, ब्लेस यू माय ब्रदर। मन कर रहा था कि सुबह निकल जाए। याद है आपको? चलता रहे, चलता रहे। अभी भाई रिचर्ड कह रहे थे कि मन नहीं कर रहा था मंडे। किसका कर रहा था? और अभी नहीं कर रहा था। अभी मजबूरी है भाई, निकलना है काम के लिए तो करना है, अब जाना है भाई। मन सच में नहीं करता है, बात पक्की है। क्योंकि जब ये सरूर सिर पे चढ़ता है, दुनिया की तमाम चीजें बड़ी फीकी लगने लगती हैं। बात सच है, ऐसा ही होता है। आमेन। लेकिन ठीक है भाई, काम करना है, जाना है, अपने दिमाग को समझाते हैं, चलो भाई काम करो, ये भी ज़रूरी है, करना है, ताकि जो भी घर गृहस्थी है वो भी चलना चाहिए, तो उसके लिए वो तमाम चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन क्या है, अदरवाइज अगर आप सरूर की बात करें, वो तो यही कहता है भाई बस इसी में बने रहें। आमेन आमेन। अच्छा, ये सवाल पूछा कभी, ये कौन है जो आप में कहता है इसी में बने रहें? आमेन आमेन। हालेलुया। और यहां पे वो कह रहा है बीज जो है वो बस सूरज की रोशनी में बना रहे। अब कुछ आप में कहता है मैं बना रहूं, आमेन। तो आप में है क्या? आमेन। यस सर। भाई समझ में आपके? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। वो बीज ही है आमेन जो बना रहना चाहता है। आमेन। तो खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं आज आपका बहुत लंबा समय नहीं लूंगा और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन चीजों को सोचें और विचारें। मैंने बहुत ऊपर ऊपर रखा है, इसमें बहुत गहराइयां हैं, इसमें अभी बहुत गहराई है। माय गॉड, गॉड ब्लेस। अभी हम सिर्फ सतह पे घूम रहे हैं। हमने केवल आपको आज इतना ही दिखाया कि ये गैप है, फिर ये लकीरें क्या हैं? हाँ जी, जो उसकी दाढ़ी का हिस्सा है, फिर नीचे गैप है उसके, और भी काफी कुछ है। गैप है, आज खाली इतना दिखाया, उस गैप में आप छिपे हुए हैं कहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो बाइबल में आयत कहती है कि और वो बादल ओढ़े हुए हैं, तो
तो ओढ़नी केवल सिर पे ही नहीं है, ओढ़नी पूरे बदन पर है। पूरी देह पे है। यानी वो बादल जो सिर पे दिख रहा है, जो कि व्हाइट विग है, वही अनॉइंटिंग आज दुल्हन के ऊपर है। आमेन। जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं, वो छिपा हुआ है, कहीं Amen. छिपा हुआ है। हालेलुया। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज हमने ये चीजें देखी और सातवें दूत का संदेश उस हिस्से को, इसको भी और उस हिस्से को खोलना है। आमेन। ये माइंड खोला किस पे जा रहा है? बॉडी पे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। आमेन। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो कि आप हमारे साथ आज दिन भर रहे। दुआ है खुदावन कि जब हम यहाँ से जाएं तो समय से घर पहुँचें और इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें, मेडिटेट करें और इस पे आप अपने राज हम पर खोलें। खुदावन आप कैसे उठाते हैं और बोलते हैं और बताते हैं। आपकी आवाज़ आती है, कहती है देख उसके बदन पे बादल है। थैंक यू लॉर्ड, कैसे आप चीज़ों को खोलते हैं। आपका नाम मुबारक हो। आमेन। बस प्रभु इसमें बने रहने का फजल दें। जैसा आज हमने पढ़ा कि बीज के लिए ज़रूरी है कि वो सूरज की यानी पुत्र की रोशनी में बनी रहे, बना रहे, हमें बने रहने का फजल दें। आमेन। आमेन। दुआ मांगते अपने भाई पास्टर रॉबिन के लिए जो पंजाब से रात को ट्रैवल करेंगे, आप उनके साथ हों और समय से वो अपने घर तक कल पहुंच सकें। हम भी हर एक अपने अपने घर टाइम से पहुंचने पाएँ। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, कि मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, जिस तरह अपने कुशलों को माफ़ करते हैं, अब हमारे कुशलों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमेन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड रियली ब्लेस यू ऑल। आमेन।